Manisha, where are you? Manisha is not there. Chalo, let's start. Shanu. Hello, good evening. Good evening, everyone, and Atma Namaste ji. आत्मा नमस्ते। We welcome you all. आज Saturday एक और session में very interesting session we are going to have, and thank you Ashu ji for giving us this platform. And let us move ahead. Welcome you Ashu ji and welcome our speaker for the day, Dr. Cheryl Davi. Over to you, Ashu ji. Good evening, everyone. Thank you, Shanu. And we welcome all the queens for today's evening. This is the second session in continuation to the first session of Cheryl Davi, which she had taken therefore yesterday on Thursday. So Cheryl, we don't need to introduce herself. She introduces herself through her work, her healing, her connection with God and us. So she's a bridge between all of us and with the universe. So she has touched a very important topic which we have not discussed, we have not shared for the long time. That is related to our hormones. So we, as a man, I came to know about female hormones. So you all females should know about the male hormones also as well today. So Cheryl is going to bring us all the information, all the important things that we need to know about each other, so that we can contribute in making a very, very healthy life and a new generation in the coming years. Okay, Cheryl, all the best for your session. Thank you, Ashu ji. Thank you, Shanu ji. Thank you, Manisha ji. Yes, Manisha ji. Thank you. Thank you, Ashu ji, for giving us wonderful platform, and I welcome you all, beautiful queens. Welcome you, Cheryl ji. देखते हैं आज इनके पास क्या है, मेल हार्मोन्स और चिल्ड्रन हार्मोन, आज उनका डिस्कशन होगा इस टॉपिक पे. Let's see what she has to share. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Queen. Welcome you all the beautiful queens and kings as well. All those who are listening and seeing this video, welcome all, and let us become better people. That's the. Cheryl ji, before you start, I just. So please spare me for that. No. Tell me. नहीं, मैं कह रही हूँ कि मेरा हो सकता है यहाँ पे नेटवर्क इश्यू है, तो बार-बार डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो प्लीज 100% bear with me. Yeah. फिर ये recording please आप carry आराम on. से सुन लीजिएगा. Yeah, sure. You carry on with your your celebration today. Yeah. Thank you. Okay. Atma Namaste, God Love Channel, Cheryl. I am a spiritual teacher, and with God's grace, that's the only thing that exists in me. और कुछ भी नहीं है मेरे पास God's grace के अलावा. तो उनके ही मार्गदर्शन में आज मैं आप लोगों को मेल हॉर्मोन्स एंड मेल एंड चिल्ड्रन एज वेल, बट स्टार्टिंग में हम हॉर्मोन्स एंड मेल के बारे में समझेंगे और फिर हम वहीं से थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग एंड एसोसिएशन ऑफ चिल्ड्रन जाएंगे. चिल्ड्रन उस उम्र में जहां पर ना वो मेल है ना वो फीमेल है. कहने का मतलब 8 से पहले बच्चे फीमेल और मेल नहीं होते, बिकॉज उनके हॉर्मोन सेम नियरली होते हैं. डिफरेंट फिजियोलॉजिकल डिफरेंस होता है, बट उनका जो अंडरस्टैंडिंग एंड दृष्टिकोण है वो सिमिलर होता है. ठीक. तो सबसे पहले तो जब हम मेल हार्मोन के बारे में समझते हैं, सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है एक सांड, एक बुल, एक एग्रेसिव वाला बुल जो आ जाता है हमारे एक पिक्चर में. दैट मेल हार्मोन्स मींस टेस्टोस्टेरोन. या और टेस्टोस्टेरोन मतलब बॉड स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डअप, अच्छा सा मस्त और पावरफुल बंदा. पावरफुल मीन्स मस्क्यूलर बंदा. और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हम एसोसिएट करने लगते हैं एंगर को, है ना, एग्रेसिवनेस को, एंगर को. और क्या एसोसिएट करते हैं आप बताएं, अपना इनपुट दीजिए.
हम जब मेल के बारे में सोचते हैं और टेस्टोस्टेरोन के बारे में सोचते हैं तो क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? Strength. स्ट्रेंथ। और फर्स्ट फर्स्ट पिक्चर क्या आता है आपके दिमाग में? मतलब मोर स्ट्रॉन्ग है, Big build. बिग बिग बिल। बिल्ड। हाँ, Protective shield. वेरी नाइस। और वंदना जी, शाहिदा जी? मैंने कहा protective shield. यस यस, थैंक यू। मोनिका जी? like boys भी होता है and hair, body hair. ओके ओके। सो हम यहाँ पर जब आप बात कर रहे हैं या आपके दिमाग में जब मेल की बात आ रही है, टेस्टोस्टेरोन की बात आ रही है, तो आप देखिए आप क्या क्या चूज कर रहे हैं या आपके दिमाग में क्या बातें आ रही है? स्ट्रेंथ, वाओ दैट्स नाइस। फिर वेल, गुड बिल्ड, बॉडी बिल्डिंग, मतलब वेरी वेल बिल्ड, मस्कुलर बंदा, प्रोटेक्शन, है ना? और जब हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? प्रोटेक्ट करने के बजाय वो हार्म कर रहे हैं। हाँ, आशु जी आप कुछ बता रहे थे? could not hear because just disconnect हो गया तो। हाँ हाँ, ठीक ठीक। जब हम Please न्यूज़पेपर repeat में, the question question answer. यस यस, तो जब हम अभी देख रहे हैं एक मेल का एक्सप्रेशन और टेस्टोस्टेरोन के बारे में सुन रहे हैं, तो जो मैडम ने कहा प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ, वेल बिल्ट, फेशियल हेयर, और जब हम न्यूज़पेपर में उनके बारे में पढ़ते हैं, जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं न्यूज़पेपर में, तो हम उनके बारे में क्या देखते हैं, पढ़ते हैं? रक्षक रक्षक की जगह Totally भक्षक different. बन रहे हैं। हाँ, यस आशु जी? Okay, okay. There's some issue with Ashuji, his mobile phone. Can you hear me now? Yes, 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 yes. अच्छा, you were saying कि जो हम पेपर में देखते हैं उसमें क्या, what next you were asking? Yes, yes. So आपको पेपर में जब हम देखते हैं, न्यूज़पेपर में, तो हम क्या देख रहे हैं? मेल के बारे में क्या क्या देखते हैं? You see, it all depends कि who's the person who's writing about them. There are two ways of looking at things. Yes. If you are wanting to appreciate good work of a man, or you are wanting to, something wrong he has done, so you want to highlight that also. So there are two ways of looking at things. There are two sides of a coin. Yes. A man can be good and bad both ways. Yes. But then when he behaves in a bad way, we cannot portray him as a good person, na? No, Yes. we can't do it. यंगर चिल्ड्रन तो नहीं बोलेंगे, बट ऐसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्टोस्टेरोन वाले लोग जो हैं, वो बहुत ही अजीब मिसबिहेव करते हैं, है ना? तो दिस इज व्हाट वी स्टार्ट टू रियलाइज के फिर जब हम लड़के को देखते हैं, यंग लड़का, तो और वो गुस्से वाला होता है या फिर मिसबिहेविंग होता है, उसके हाथ पैर इधर इधर घूम रहे हैं, जब भी देखो तब झगड़ा करने के लिए रेडी होता है, और ऐसे सब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिम्टम्स होते हैं, तो हम बोले या उनकी पेरेंट्स बोले या उनके रिलेटिव्स बोले या जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई उसके हार्मोन्स है ना, हवा में है, टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई है उसका, इसकी वजह से उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। कितने लोगों को लगता नहीं है? कहते this is a growing age. This is a growing age. हाँ, ये भी बोलते हैं. They're trying to defend them in this way also. yes, this is a growing age. लड़के They have neither grown up, neither they are kids. They are in between. yes, तो उनको पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं. yes, So they are protecting them in a very wrong way. yes, very nice. Thank you very much आशु जी for this. So एक तो वो बोल रहे हैं वो ग्रो हो रहा है तो उनको पता नहीं क्या हो रहा है ना? और क्या आपने सुना है उनके बारे में? Because when they start to misbehave like this, तो क्या बोलते हैं उनके पेरेंट्स? शरारत कर रहा है. Inherited है. Inherited. That's it. They don't take it in a very offensive way. They take it वो शरारत कर रहा है. I mean, it's just a kind of they have accepted it. Yes. That is the growing stage of their life. They can do it. Yes. In fact, which is the wrong way of bringing up a kid. Exactly. शाहिदा जी आप क्या बोल If रहे he थे? can't misbehave,
if he can't misbehave with his sister at home, how can he misbehave with the other girls outside? Isn't it? Exactly my point. Very nice, शाहिदा जी. Very nice, आशु जी. शाहिदा जी क्या बोल रहे थे आप? मोस्टली पेरेंट्स यही कहते हैं कि इनहेरिटेड है, बाप से आया है, वो फादर से आया है, उसको मिला है, तो वो ऐसे ही रहेगा, हाँ, चेंज नहीं होगा. ये भी हम सुनते हैं कि भाई वो बाप जैसा होता है वैसे ही बेटे होते हैं भाई, है ना. Yes. और ये Yes. सब के ऊपर सबसे हाईएस्ट ऑफ एपिटॉम क्या हो गया कि हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में आ गए हमारे फेवरेट वाले अमिताभ बच्चन जी. एंग्री यंग मैन, मर्द को कभी दर्द नहीं होता. पता नहीं कौन सी फिल्में लेके आए, हम लोग भी देख रहे थे चाव से बचपन में. अब रियलाइज हो रहा है कि ये बेवकूफी बकवास चीजें हैं, बट चलो कोई नहीं, विल फ्लो विद द फ्लो. बट उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने एक मेल के साथ एंगर एंड ईगो एंड ये सब चीजों को एसोसिएट कर दिया. साथ साथ में टेस्टोस्टेरोन जब हाई होता है तो ये सब चीजें भी उन्होंने एसोसिएट कर दी. मतलब हाई टेस्टोस्टेरोन, हाई एंगर, हाई रूडनेस, हाई ईगो, हाई समथिंग, ऑल दोज थिंग्स जिसमें मसल है, मसल का प्रदर्शन है, मतलब एग्रेसिवनेस है, बॉडी एग्रेसिवनेस है, फिजिकल एग्रेसिव वायलेंस है, ये सब को एसोसिएट कर दिया. यस अनुपमा जी. यस. सो आपको क्या लगता है, इज हाई टेस्टोस्टेरोन, बिकॉज मेल में सबसे, क्योंकि फीमेल में देर आर एजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन एंड टेस्टोस्टेरोन लिटिल मात्रा में, बट मेल में इट इज ऑल टेस्टोस्टेरोन एंड बाकी जब बहुत मिनिमल है, बट मेन इज टेस्टोस्टेरोन, है ना. तो आपको क्या लगता है उनका जो ये बिहेवियर है, क्या वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से है, हाई लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन? No. उनको पैम्पर किया जाता है उस तरह से कि ये तो लड़के हैं, ये ऐसे ही करेंगे. हाँ, लड़के हैं लड़के कुछ भी कर दे माफ है, but that is the thing. यस, लड़के हैं कुछ भी करेंगे. तो the truth is that testosterone has no association with aggressiveness. ये सिर्फ aggressiveness, violence, rude behavior, bad attitude, ego behavior, all this is just because of the bad and wrong upbringing of a man or a boy. 100% has nothing to do with any part of hormones, है ना. कितना भी highest of hormones हो, ऐसा नहीं हो सकता कि सुबह उठ के उसके पास एक ही दिमाग में थॉट है कि भाई सेक्सुअल अब्यूज करो, सेक्सुअल नहीं, ऐसा होता ही नहीं, दूर दूर तक नहीं होता. नहीं, अगर ऐसा हो तो सभी करें ना फिर. एग्जैक्टली. और सबके साथ ये हो. वेरेज जब हम फीमेल को देखते हैं, है ना, हम फीमेल को देखते हैं तो 99% और 90% तो मैं बोल ही सकती हूँ, हर एक फीमेल को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम आते ही आते हैं. कितनी भी अच्छी हो, बुरी हो, यंग हो या एज 40 के आजू बाजू हो, उनको ये मूड स्विंग्स या फिर इरिटेबिलिटी या फिर ऐसे कुछ प्री मेंस्ट्रुअल आता ही आता है. पर लेडीज के लिए कभी ये नहीं बोलते. हाँ, सो दिस इज द होल प्ले. द ट्रूथ इज, अच्छा, जब हम लड़कों को बोलते हैं कि भैया आप लड़कियों की तरह बिहेव मत करो, तो लड़कियों को क्या लगता है, इट इज अ डाउनग्रेडिंग थिंग. बट आप थोड़ा और ध्यान देखें, लड़कियां और फीमेल्स ऑफ एनी एज, इसलिए फीमेल्स बोल रहे हैं, फीमेल्स do not have any control, when their hormones are really going haywire, and when they, because that is the way she's made, है ना. आप कितना भी, Can you take the pic of the group? Can you take the pic of the group? yes, थोड़ा सा हम लोग स्माइल करते हैं, फीमेल स्माइल. Very nice. Okay, so
the females have no control over their thoughts and their emotions when their hormones are haywire. It is 100% guarantee. Yeah, कुछ भी कर लो, क्योंकि I myself have gone through this, and कितना भी हम मेडिटेशन करते हैं, ये करते हैं, वो करते, वो थोड़ा सा कम होता है, बट खत्म तो हो ही नहीं सकता. Whereas in males, this is not the truth. It is only wrong upbringing and bad attitude, and whatever they see is what they do, because they don't know how to do anything else apart from being aggressive and violent. तो इसीलिए उनके जो हार्मोन्स है वो वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल में आ सकते हैं. हार्मोन्स नहीं आ सकते, उनका बिहेवियर बहुत अच्छे से कंट्रोल में आ सकता है. इट्स जस्ट द मैटर ऑफ राइट अपब्रिंगिंग. अब क्या होता है? What is testosterone for in the truth? 100% it is to become strong. 100% it is for bodybuilding. 100% it is for being a protector. 100% it is being a gentle person. जो हमने gentle giant नाम दिया है, वो हमने एक उत्कृष्ट पुरुष का दिया है, जो अपने पूरे पूर्णतर बॉडी भाव में बहुत ही अच्छे लेवल पे जेंटल होता है ना. इसलिए उनका नाम जेंटलमैन रखा है, एंड विमेन का नाम लेडीज, जस्ट लेडीज. सो यहाँ पे द होल सोसाइटी हैज गॉन टोटली हेवायर, जहां पे हम लेडीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. जैसे वो थोड़ी क्रैंकी होती है तो हम उसको कोई भी एब्यूजिवली या वायलेंटली या जो भी होता है मिसबिहेव करते हैं, उनको नेम कॉलिंग करते हैं. बट व्हेन it is not the, rather ये जब issues होते हैं females में, it is 100% because of the hormones, where she cannot control her emotions, she cannot control her thoughts, yeah, and she becomes irritable, and it is only because of the hormones. And opposite में males have nothing to do with the hormones. उनके hormones ऊपर जाए नीचे जाए, God has made them really good and strong, and all they can do is very easily handle it. It is just that उनको translation नहीं आता. So यहाँ पर जब हम बोलते हैं कि अरे तुम लड़कियों की तरह रोते हो, या you are a strong boy, या don't behave like a sissy girl, या ऐसे सब चीजें, तो what we feel is that ये सब dialogues बोलते हैं कि लड़कियों की तरह behave मत करो, तो हमें लगता है हम लड़कियों को डिटोरिएट कर रहे हैं. एक्चुअली दिस इज द ट्रूथ, क्योंकि लड़कियां कंट्रोल नहीं कर सकती अपने हार्मोन्स. मेल तो आराम से कंट्रोल कर सकते हैं. रादर एक रियल मेल अपने हमेशा कंट्रोल में ही होना चाहिए, है ना. कभी भी एक एटीट्यूड में ये अगर कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी आपके हस्बैंड है या बॉयज हैं या फ्रेंड्स हैं मिसबिहेव करते हैं, तो आप एक चीज समझ लीजिए कि दे हैव नॉट बीन टॉट हाउ टू बिहेव. भूल से भी इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स, नॉट एट ऑल. ये मेरी बात एक डॉक्टर से हुई. सो क्या हुआ कि आई वॉज गोइंग थ्रू अ प्री-मेनोपॉजल सिम्टम्स, एंड many of my clients, many of my clients, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्यों ये मैं हीलिंग भी कर रही हूँ बट इतना मजा नहीं आ रहा है, मुझे पर्सनली मजा नहीं आ रहा है. एंड they are telling me that this is the problem and I can see hormones as a problem. तो डॉक्टर्स भी अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं उनको, बट मुझे हॉर्मोन्स दिख रहे हैं. यंगर चाइल्ड से लेके ओल्डर 75 years, अब 75 years में हॉर्मोन्स कहाँ से प्ले कर रहे हैं. बट द ट्रूथ इज फीमेल्स जैसे मेल में लाइफ टाइम हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, मतलब दे प्ले अ गुड रोल, वैसे फीमेल्स में भी आफ्टर द मेनोपॉज इज ओवर एंड आफ्टर सो मेनी इयर्स स्टिल द हॉर्मोन्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल उनके फिजिकल बॉडी में, उनके इरिटेशन में या उनके स्वभाव में, है ना. सो I was just trying to figure out कि क्या हो रहा है. तो शायद मुझे लगता है मैंने खुद ही मैनिफेस्ट कर लिया अपनी लाइफ में, मुझे भी सिम्टम्स आने लग गए, एंड आई एम अ वेरी काम पर्सन. अचानक आई हैव स्टार्टेड बिहेविंग लाइक रियली इरिटेबल, है ना. और मैं सोच रही हूँ ये कैसे, ये कहाँ से आया. आई गो टू द रूट्स.
फिर मैंने रियलाइज किया कि शायद दिस इज द रीजन, क्योंकि मेरे पीरियड्स भी ऑफ हो रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है. आई एम वेरी वेरी रेगुलर ऑन माई मंथली पीरियड्स, बट स्टिल कुछ हो गया. तो आई वेंट टू द डॉक्टर एंड आई टोल्ड हिम, I cannot control my mind, I cannot control my thoughts, I'm going crazy. And मुझे फिर रियलाइज होने लगा कि हाउ डिफिकल्ट इट इज. मुझे सास जो है उनके ऊपर दया आने लग गई, क्योंकि अगर मैं पागल हो सकती हूँ तो कोई भी पागल हो सकता है गारंटी के साथ. और आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि नहीं, दिस इज बियॉन्ड कंट्रोल. या तो मैंने डॉक्टर से बात की, उन्होंने बोला ये वो, फिर उन्होंने बताया इट इज अ प्री मेनोपॉजल थिंग. I said, okay. Then whatever he gave, he did not give me any medicines. He just gave me some vitamins, है ना. ऐसे vitamins हैं जो ठीक कर देते हैं चीजें. So अगर आप लोगों को ये symptoms हो रहे हैं तो don't think कि भाई मुझे HRT करना पड़ेगा. Hormone replacement therapy is not needed at all. Just छोटे छोटे minerals वो दे दो, हम चॉकलेट पेपरमिंट खा के ठीक हो जाते हैं. सीरियसली ठीक होता है. तो मैंने उनको पूछा, because I'm a doctor, he's a doctor, but this part a gynecologist is more better, and I went to a hormone वाले डॉक्टर के पास. So I told him that इतना ज्यादा मेरा दिमाग खराब हो रहा है एंड इतना ज्यादा अनकंट्रोल्ड थॉट्स हैं, इतना एंगर आ रहा है, बिकॉज पहले इतना स्ट्रॉन्ग लेयर था मेरे हॉर्मोन्स का, तो मुझे कुछ भी छूता था तो मुझे फील ही नहीं हो रहा था. कोई आके इंसल्ट करके गया, इतना मुझे सुनाई भी नहीं देता. अब तो वो जो चला गया था वो भी चीजें चुन चुन के आके मैं रिएक्ट कर रही हूँ. उस दिन उसने ऐसा किया, उस दिन उसने ऐसा किया, मतलब पता नहीं क्या क्या. सो मैंने सोचा, मैंने डॉक्टर को बोला कि अगर फीमेल्स की ये हालत हो रही है तो मेल्स के भी ऐसी हालत होनी चाहिए ना. तो आई थिंक कि जो लोग वायलेंट हैं और जो लोग RAPE करते हैं, तो आई थिंक बिकॉज वो अनकंट्रोल्ड होगा. दैट इज व्हेन ही टोल्ड मी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, शेरिल, फीमेल्स में इट इज अनकंट्रोल्ड, बट मेल में इट इज अ बैड अपब्रिंगिंग. दैट्स पॉइंट ब्लैंक थिंग उन्होंने बता दिया. फिर मैंने बैठ के पूरा रिसर्च किया. एनी विच वेज, जैसे मुझे पता चला हॉर्मोन्स का इश्यू है मुझे, तो मैंने अपने आप के ऊपर फिर उस तरह से काम करना शुरू किया. एंड नाउ आई एम बैक अगेन नॉर्मल. आई हैड अ वेरी बैड एंड हॉरिबल 3 months. With God's grace, it is necessary so that even I become more sensitive towards all the other females and my own self. अब उसका मैं आपको सबके solutions बताऊंगी, because we are a solution. I am a solution oriented person. I need solutions for everything. Khair, this is the difference between a man and a woman. A man can 100% take care of his thoughts because उनको ऐसे thoughts आते ही नहीं हैं. It is just a bad upbringing. They don't know कि वो how to react. जो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं उनके हिसाब से वो कहते हैं मुझे ट्रिगर करते हैं, किसी के कपड़े मुझे ट्रिगर करते हैं, किसी की चीजें मुझे ट्रिगर करती है, मेरी बीवी जो है मुझे आके उकसाती है. ये डायलॉग्स बहुत अच्छे से आते हैं. हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिजियोलॉजिकली गॉड हैज मेड देम रियली स्ट्रॉन्ग. इट इज जस्ट दैट दे डोंट नो हाउ टू बी स्ट्रॉन्ग. और जब वो लोग उनको बोलते हैं फीमेल की तरह बिहेव मत करो, इसका मतलब यही है कि फीमेल कैन नॉट कंट्रोल हर हॉर्मोन्स. 100% यू कैन कंट्रोल योर हॉर्मोन्स. सो अपने दिमाग को, हर चीज को कंट्रोल में रखो, है ना. सो दिस इज हाउ somehow we have lost the track, but the truth is that male have 100% control of all their hormones and naturally their emotions, and females can have a lot of, मतलब उनको थोड़ी छूट देनी ही चाहिए. जब उनके टाइम खराब होता है, जब उनको क्रैंकीनेस होता है, जब उनको ओवर इरिटेशन हो जाता है, तो थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए, है ना. एनी क्वेश्चंस? अगर आप लोगों को पता होगा प्रेगनेंसी के टाइम पे भी फीमेल्स गो क्रेजी. इतना ज्यादा उनके पास
क्रैंकीनेस और इरिटेशन एंड आफ्टर पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी होता है। तो ये सब डिप्रेशन के लक्षण आराम से फीमेल्स को हो सकते हैं जिसमें वो कुछ भी नहीं कर पाती। Whereas मेल के पास with God's grace this is the gift to a male कि वो हर चीज अपनी कंट्रोल कर सकते हैं अपने दिमाग से। Yes, Anupama ji, you have to say something? No. Yeah. I'm just absorbing. Yeah. Thank you. Thank you. Okay. So I will mute you. Yes. Yeah. So this is what it is about the male hormones and female hormones. Anybody else has any questions or any comments to say? Sometimes I feel I don't know, am I am I speaking right or okay or something? Okay. Cheryl, there is no mood swings in men. Do you know that? Exactly. There is no mood swings in We men. have got control over our moods. Yes, 100%. That is the God's gift. लोगों को लगता है females are, God gifted. उनके पास power है, उनके पास strength है. But the truth is, male has real God gift. Real वाला. मुझे तो लगता है female को भगवान ने ना बना के सीधा war zone में डाला है. We always know what we. Yes. So male have this understanding and capacity to manipulate. Females are already being manipulated by their hormones. मतलब अभी अच्छी है, 1 सेकंड में पागल हो जाएगी, फिर वापस ठीक हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या करेगी। इमोशनल ज्यादा है फीमेल। हाँ, इमोशनल ज्यादा है बिकॉज वो उनका हैप्पीनेस कहीं बाहर से आता है। मेल का हैप्पीनेस वो अपने अंदर से आता है ना? यस, बिकॉज वो रियलिटी में जीते हैं ना, हम फैंटेसी में ज्यादा होते हैं। वो प्रैक्टिकल होते हैं और हम फैंटेसी में होते हैं बिकॉज हमें उस तरह से शाहरुख ने आके ट्रेनिंग दी है। यस। रॉन्ग ट्रेनिंग का नतीजा है दोनों तरफ, है ना? दोनों तरफ वो अमिताभ बच्चन आके मेल को गलत चीजें सिखाते हैं, एंग्री यंग मैन एंड ऑल दैट इज यूजलेस एटीट्यूड्स, एंड शाहरुख आके हमको सपने दिखाते कि एक चॉकलेटी बॉय आएगा, ही विल डू दिस एंड दैट, एंड देन ना इधर के रहे मतलब चॉकलेटी बॉय आता है हु इज एन एंग्री यंग मैन। नेक्स्ट। Seriously. Yes. Monica ji, you were saying something? I wanted to ask, do men get menopause? As I told you, they're really gifted. No, they don't have any menopause. But I recently got one client who was facing menopause and their tests were clearly showing that yes, menopause हुआ है उनको। So, yes. What is his age? 50. Yeah. So I was just trying to say, menopause is kind of pause. It is like a starting में जैसे छोटे बच्चे होते हैं, they don't have any sexual thing because वो छोटे हैं. Everything is very susupth, धीरे धीरे कम है. Then it increases, the libido increases and libido decreases. But menopause का जो understanding, as in female menopause का understanding है, is that the females are okay. So जो periods होते हैं females को या जो उनका monthly cycle होता है, they are the protectors of a female, है ना? प्रोटेक्ट करते हैं उसको 24 घंटे 7 दिन कंटिन्यूसली, एंड हैप्पीनेस के लिए एक कुशनिंग देते हैं। सो द फीमेल, आप देखेंगे ना, फीमेल हमेशा चुलबुली होती है, उछल कूद करती है, इज बिकॉज ऑफ हर हॉर्मोन्स। या जैसे जैसे ये हॉर्मोन्स का जो कुशनिंग है वो पतला होता जा रहा है, तो वो फिर इरिटेटेड होने लगती है, तो वो प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं। एंड देन मेनोपॉज आता है तो एकदम समझो सास ही बन जाती है। she does not have happiness, personal happiness. Then she'll have to find, because इससे पहले हम बाहर ढूंढते हैं happiness, after 45 or after menopause she will have to find a new person in herself, and internal happiness find करने की जरूरत पड़ती है ना? So menopause you could say kind of, but उसकी जो symptoms है और उनकी जो
फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स है वो टोटली अलग है. मेन बिकम इनसिक्योर्ड बिकॉज उनका लिबिडो कम हो रहा है ना. उनको इनसिक्योरिटी है कि मेरी वाइफ चली जाएगी या मेरी गर्लफ्रेंड चली जाएगी बिकॉज माई लिबिडो हैज गॉन डाउन. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इनसिक्योरिटी है. बट मैन को इनसिक्योरिटी जिंदगी भर होती है. लिबिडो ज्यादा हो तो भी इनसिक्योरिटी, कम हो तो भी इनसिक्योरिटी. इनसिक्योरिटी के बहाने होते हैं. But when it comes to libido thing, like let's just say sexual activity, okay? Nowadays, when your eating habits have changed, बहुत सारी चीजें change हो चुकी है. Girls are getting early periods, menopause जल्दी आ रहा है. Okay, pre-menopause जल्दी आ रहा है. Post, when menopause होता है, then post-menopause होता है. Pre-menopause is hitting earlier. Yes. Women are facing sexual activity में problems उनको हो रही है. Yes. Right? Yes. So even they have insecurities. Females also have a lot of insecurities when it comes to her own personal life. Yeah. हाँ, वैसे इनसिक्योरिटी हो ना हो बट पर्सनल लेवल पे तो वो इनसिक्योरिटी होती ही है. हाउ शी लुक्स, हाउ शी टॉक्स एंड एवरीथिंग अराउंड व्हेन शी इज इन हर पर्सनल स्पेस. तो 100% उनको इनसिक्योरिटी होती है. बट मैन को कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब विद गॉड्स ग्रेस, लाइक फीमेल की जो दिमाग में जैसे रोमांस, हमने फीमेल्स का रोमांस होता है वैसे फीमेल्स का वैसा ही फैंटेसाइजिंग ऑफ इनसिक्योरिटीज होती है. मैं ये हूं, मैं वो कलर, मैं इधर इधर एक छोटू सा दाग है, ओ हो मैं कैसे हैंडल करूं, पता नहीं मैं क्या करूं. एंड मेल को कोई फर्क नहीं पड़ता. तो somewhere I feel that ये जो insecurities हैं जो आप बोल रहे हैं कि ये दाग है या फिर कोई भी चीज, anything, तो ये कहीं ना कहीं हम women के ही कारण हो रहा है. We women don't support each other. Men को फर्क नहीं पड़ता भाई दाग हो कुछ ना, ये फर्क पड़ना, हम तो अच्छे दिख रहे हैं ना सिर्फ. But we women don't support each other. yes. तो Right? होता क्या है, हाँ, नहीं, कुछ मर्द भी इन चीजों को बहुत नोट करते हैं. ये दाग क्यों हुआ, मोटी क्यों हो गई, पतली क्यों हो गई, हाँ, कलर क्यों इतना फेयर हो गया, डार्क क्यों हो गया. तो मतलब ये इनसिक्योरिटीज मर्द भी देते हैं. नहीं, मैं वैसे बोल रही थी लाइक women to women वाला security and men to men. If we are in a group of women, सबसे पहले उंगलियां वही उठाती हैं. मर्द तो बाद में उठाएंगे, लेकिन जब मर्द एक ग्रुप में बैठे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. पर लेडीज में ये गॉसिप ज्यादा होती है. या सो यहाँ पे जैसे शाहिदा जी ने बताया, लेडीज में गॉसिप ज्यादा होती है. कहने का मतलब यह है कि दे डोंट टॉक नॉन गॉसिप, दे डोंट टॉक रियल एजुकेशन, दे डोंट टॉक रियल टॉक, है ना. दे डोंट टॉक दैट अच्छा मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि वो प्रॉब्लम तो कोई, हम लेडीज बात ही नहीं करते. हमारे पर्सनल डीपेस्ट ऑफ इनसिक्योरिटीज एंड डीपेस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, ये तो हम क्वींस में हैं अभी, इसलिए हम इतने क्वीनली बिहेव कर रहे हैं. बट ये हम हमारी फ्रेंड्स एंड हमारी रियल फ्रेंड्स जो अपनी पर्सनल गर्लफ्रेंड्स हैं इतने सालों से, उनके साथ कभी भी ये सब बातें नहीं करते, है ना, जो रियल टॉक है. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू एजुकेट आवरसेल्व्स फर्स्ट, कि हमें हमारे ये इंटरनल टॉक्स को बाहर जाना है, बाहर ले जाना है. ये मुझे कब पता चला, जब मैं खुद इसके आई वाज गोइंग थ्रू दिस एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ ब्रेवरी बताना कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ. बट मुझे अब मैं उस फेज में आ गई हूँ जहाँ पे मैं आई एम मोर ऑफ अ आई डोंट केयर लोग क्या सोचते हैं. इंसान हूँ, इंसान के लेवल पे चीजें होती ही है, और मैं इंसान हूँ, रियल वाला इंसान, एलियन नहीं हूँ कि मुझे the more you think about others, the more insecure you'll feel about it. हाँ, तो मेरे दिमाग में यही एटीट्यूड है कि अगर मुझे हो रहा है तो दैट मीन्स दैट कितने लोगों को हो रहा होगा, और मुझे आंसर मिला है. कितने लोगों को ऐसा होगा कि पता नहीं क्या डॉक्टर क्या बोलेगा, और अभी तो मेनोपॉज आ गया, मैं लोगों के सामने क्या शर्म करूं, क्या बताऊं, क्या नहीं बताऊं, मेरी मम्मी को बोलूं, मैं पापा को बोलूं, मैं सास को बताऊं, मैं हस्बैंड को बताऊं. द होल थिंग गोज बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन.
और लास्ट ऐसे करते हैं एज ए नहीं सडनली शी इज बिकम जैसे कहते हैं ना कि वो अछूत हो गई है एकदम, समथिंग लाइक दैट। आप पूजा नहीं कर सकते, किचन में नहीं जा सकते, ऑल दोस थिंग्स। सो यू ब्रिंग अप इन द माइंड दैट समथिंग रॉन्ग इज विद यू। यस, वो पीरियड्स के दौरान होता है। ये बहुत अच्छा भी है बिकॉज जैसे आशु जी बोल रहे हैं, हाँ डेरोगेटरी लगता है। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो जैन है, तो उनको है ना बहुत बुरा लगता था कि देखो मुझे कितना परेशान हो रही हूँ, पीरियड्स आ गए तो मैं घर के बाहर आई मीन मुझे ऐसे छूत अछूत वाला एटीट्यूड है। तो मैंने बोला ये तो सुपर गुड है, तुम पागल हो क्या? इतना अच्छा मौका मेरे को मिल जाए मेरे घर में, मेरे को पीरियड हो, यू आर गेटिंग अ ब्रेक देन, नो सो व्हाट, मेरे घर एंजॉय में। योरसेल्फ। और तो मैं मेरी फ्रेंड को बोल रही हूँ, अरे मेरी जान ये तो वैकेशन है। सो हम लोग अब उसे जैन वैकेशन बोलते हैं। और हम इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्लूमी नाउ, एकदम ग्लूमी ग्लूमी के और रोना धोना उसका शुरू होता है, उससे अच्छा वो अच्छे से तैयार हो जाती है, मस्त मस्त। अब मुझे रोकने वाला नहीं, मुझे कोई टोकने वाला नहीं कोई बोलेगा नहीं पूजा करो, नहीं ये नहीं करो। सो शी बिकम्स अ फ्री बर्ड, और फिर वो सीधे मेरे घर पे आते बिकॉज उसको कोई बट छूट। शैरल जी, ये एक लिमिट टाइम के लिए ही अच्छा लगता है कि हमें फ्रीडम थोड़ी सी मिलती है, बट कहीं आके ना वही चीज हमें इरिटेट भी करने लगती है। आई नो, बट आई है एम ना? आस्किंग यू ऑल, इरिटेट कर रही है ना। अब आप वो हम्म। थॉट को वेकेशन की तरह सोच लो। हम्म। मैं सच बता रही हूँ, आपका पूरा दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा। एंड देन नहीं यू नहीं, वो आप सही कह रही हैं वेकेशन की तरह, बट कुछ चीजें हमें उस टाइम पीरियड में होता है कि हम करें वो चीज, बट इन पाबंदियों की वजह से हम वो कर ही नहीं पाते। नहीं, बट फिर आप अपने आप को रूम में बंद कर दो, फिर आपको जो करना है करो। यस ना। नहीं, हाँ, उससे अच्छा हम अपनी सोच ही क्यों ना बदले। लाइक जैसे सब ये मान एवरीवन बिलीव्स इन गॉड, राइट? कभी ना कभी आपने शायद महाभारत देखा भी होगा या फिर गीता पढ़ी भी होगी। आई हैवंट रेड इट, बट आई हैव हर्ड इट। सो उसमें ये लिखा है कि भगवान हर जगह में है, हर स्थान पे है। तो आप जब ये बिल्कुल। बात बोलते हो औरतों को कि पीरियड्स में आप भगवान के सामने नहीं जा सकते, देन हाउ द हेल? या तो आप वो बात बोल रहे हो कि भगवान हर जगह वो गलत है, या तो आप भगवान के सामने नहीं जा सकते, वो गलत है। तो हाँ, बट बेसिकली मोनिका जी आई अंडरस्टैंड आपकी बात। भगवान हर जगह है और पीरियड्स में कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। बट मान लो अगर कोई बोलता है कि मंदिर मत जाओ, तो जस्ट टेक इट एज अ वेकेशन। मंदिर मत जाओ तो फिल्म देखने चले जाओ, तो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने चले जाओ। मैं तो पहले मैं ऐसे सोच रही थी कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, बट जब मेरे ऊपर गुजरती है, मतलब मैं आई टेक अ ब्रेक फ्रॉम अ जिम, आई एम फ्री फॉर 2 days ऑफ माई लाइफ एंड आई Can रियली I, वर्क। can I say something on this? यस यस शांति। ये जो बोलते हैं मंदिर मत जाओ, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। डू वी हाँ हैव टाइम टू डिस्कस ऑन दैट? बिकॉज वो पूरा डेविएट हो जाएगा टॉपिक से। एग्जैक्टली, सो इसलिए we'll मैं भी keep बात it नहीं for कर। some other day. Yes, yes. So Shanu ji can take a session on that. It will be so super nice, है ना? But कहने का मतलब है I understand, derogatory feel होता है जब लड़कों को बोलते हैं कि अरे लड़कियों की तरह बिहेव मत करो, तो भी हमें derogatory feel होता है। मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ, don't feel derogated, don't feel कि हम कम है। हम कम हो ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने हमें सीधा जन्म देके वॉर जोन में ही डाल दिया। और किसी से वॉर हो ना हो, हमें कंटिन्यूस हमारे हार्मोन से वॉर में रहना ही पड़ता है। एट एनी एज आफ्टर 8 वी स्टार्ट टू डेवलप मेल एंड फीमेल हार्मोन्स इन विच एवर बॉडीज, जो भी बॉडी में है। तो मेल का कंटिन्यूस रहता है, एक 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 प्रोसेस कंटिन्यूस होता है हॉर्मोन्स, और फीमेल का जु 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 जु, वी आर लाइक ड्रामा क्वींस ऑल द टाइम, ड्रामा ड्रामा ड्रामा। किसी और के साथ होना हो, खुद के साथ, और खुद के अंदर ड्रामा चलता है। सो अगर कोई बोलता है, इट इज जस्ट मैटर कि अभी आप इतना स्ट्रेस मत ले लो। एंड व्हेन इट कम्स टू बॉयज, एंड ये डायलॉग बॉयज विल बी बॉयज, नो, बॉयज वर ऑलवेज born as a man। वो बॉयज विल बी बॉयज को हमने गलत तरीके से पैम्पर करके रॉन्ग एटीट्यूड बना दिया है। उनके पेरेंट्स ने वैसा किया और फिर हमने उसको जारी रखा। तो हम अब हैंडल करें तो किस तरह से हैंडल करें ये सिचुएशन को? आपके पास कोई सजेशंस हैं?
Okay. So now I will give you all suggestions. Rather not suggestions, but solutions. और ये अगर आपने अपनी लाइफ में डाल दिया, तो we are going to have a very, very happy, healthy man. And happy, healthy, happy is the right word. Happy, healthy man मतलब happy, healthy family. ठीक. तो सबसे पहले तो मैं समझ सकती हूँ irreversible भी सिचुएशन है. जिनकी irreversible सिचुएशन है, उनको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड लेकर, बॉयज जो बॉय ही रहने वाला है, मैन कभी नहीं होगा, उसने ठान ही लिया है कि मैं एक बिगड़ा हुआ लड़का हूं, तो उसको सुधारने की जरूरत नहीं. बट जो हम लोग नॉर्मली हमारी लाइफ में जी रहे हैं, विद गॉड्स ग्रेस वी हैव गुड पार्टनर्स, तो हमें करना क्या है? कुछ नहीं. वी हैव टू स्पेंड क्वालिटी टाइम. जैसे कि अगर आप लोग अगर हो सके तो स्टार्ट प्लेइंग गेम्स इन द हाउस, लाइक ताश खेलो, चेस खेलो, कोई ना कोई गेम्स खेलो. आपके पास बच्चे होते हैं तो हम गेम्स खेलते हैं ना बच्चों के साथ. कितने लोग गेम्स खेलते हैं बच्चों के साथ जब वो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर होते हैं? खेलते हैं ना. तो अरुणिमा जी, आपका बच्चा अब बड़ा हो गया है, आप अभी भी उनके साथ गेम्स खेल रहे हैं? Yeah, if we get a time. If we get a time, that is a Because wrong. he doesn't have time. Because the moment he that is the problem. Because एक peer group होती है, जो लोग उनको influence करते हैं उनके हिसाब से, मतलब majority of the parents don't have time, but I am not such a parent. I am always waiting for him. Yes. पर उसको लगता है कि अरे मम्मी पापा तो ऐसे ही होते हैं, वो लोग अगर उनके साथ प्रॉब्लम हो गई तो he will create a problem with me also, just to be with the peers and they'll talk about it. Yes. So it's a mass thing, it's not a particular family. Particular thing. So now आप लोगों के, मेरे फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स, हम लोग जब फ्रेंड्स थे और फ्रेंड्स बातें करते थे, तो हम क्या बातें करते थे? कुछ सब लोग बातें कर रहे हैं, अचानक एक लड़की ऐसा बोलती, नहीं मेरे मम्मी पापा तो मुझे इतना प्यार से बात कर रहे हैं, है ना. तो लेट हिम बी दैट पर्सन जिसमें ही सेज दैट नो माय पेरेंट्स डोंट बिहेव लाइक दिस. तो बिहेव लाइक दिस में करना क्या है? जब हम बच्चा खाना खाने बैठता है तो ऐसी आदत हो जाती है हमारी, पता नहीं कहाँ से आ गई है ये बेवकूफ वाली बातें. शायद बॉलीवुड जो हम लोग उस दिन एक्सप्लेन कर रहे थे कि ओवर एक्सपोजर मीडिया एक्सपोजर, शायद हमने ही वो एक्सपोजर ले लिया है कि जब भी डाइनिंग टेबल के ऊपर होते हैं तो जितनी बार भी कोई टीवी सीरियल है या कोई भी होता है, कुछ भी होता है, डाइनिंग टेबल पे नाटक तो शुरू होना ही चाहिए. डाइनिंग टेबल इज अ कॉन्फ्रेंस रूम एक्चुअली, एंड ब्लेम गेम रूम, एंड वहां पर तो ये नाटक शुरू होना ही चाहिए. और कोई ना कोई बैंग करेगा और खाना फेंकेगा, प्लेट फेंकेगा, फ्लाइंग सॉसर, फ्लाइंग डिश और पता नहीं क्या क्या. फिर मुझे बताए अरुणिमा जी, क्या आप अपने बच्चों की छोड़ देते हैं, क्या हम भी हैप्पीनेस को एसोसिएट करेंगे क्या खाने से? या फिर क्या हम अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे व्हेन दे मिसबिहेव लाइक दिस? है ना. It's not your fault, you've not done anything of that kind. I know that. But फिर भी because कहीं ना कहीं this is the way it is, उनके दिमाग में यही है कि मम्मी पापा के साथ बात क्या करेंगे. पूरा दिन वही, रूम साफ करो, पढ़ाई करो, कॉलेज जाओ, ये लड़की से बात मत करो, वो लड़के से बात मत करो, ये लड़की तुम्हारी टाइम पास ही है, वो लड़का तुम्हारा टाइम पास ही है. यही तो बातें करते हैं पेरेंट्स. चौथी कोई बात करते हैं क्या पेरेंट्स? But I never get to speak only, मतलब ये सब बातें तो छोड़ दीजिए. हाँ, तो peers होते हैं ना वो. Peers, yeah. They are more into peers. That is the thing. फिर थोड़े दिन के बाद whenever he is in problem, he comes to me. At that time we have a heart-to-heart talk, and Yes. he's fine. Yeah. Yes. पर जब वो प्रॉब्लम में घुसने वाला होता है तब मैं उसको रोक भी नहीं सकती हूँ. He has told me कि मुझे सफर करने दीजिए और मैं खुद सीखूंगा ये गलत है या वो है. Then I'll remember it more. Yeah, very nice. Very matured attitude. But then आप उनको फिर यो भी बताए कि भाई when you have learnt your lesson, then don't come and start misbehaving with me. है ना. आराम से भी चीजें हो सकती है. हाँ.
So क्योंकि हमें तो पता नहीं चलता ना उसके लाइफ में कब क्या हो रहा है, because he wouldn't share with mothers, I mean he will share it with peers. yes, yes, yes. Shanuji, you had to say something? No, nothing here. Okay. आशु जी, आपको कुछ बताना था? Okay. Okay. So basically, I want you all to start playing real physical games, mind games, as in not the politics in the house, पर real games जिसमें आप बच्चे को बचपन से इन्वॉल्व करो। और जैसे मैं कपल्स को बोलती हूँ, डेट नाइट मतलब डेट नाइट, जाना है मतलब जाना है, टाइम स्पेंड करना है मतलब करना है। अगर हम हमारे स्केड्यूल से हमारे बच्चों के लिए ऐसा टाइम स्पेंड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और डाइनिंग टेबल इज द बेस्ट प्लेस टू बी। डाइनिंग टेबल शुड बी द फन टेबल। तो डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के आपको गेम्स भी खेलनी है, डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के आपको अच्छे वाला खाना खाना है साथ में बैठ के, और ट्राई करें। और अगर जैसे कि हो सकता है बच्चा नहीं बात कर रहा है, तो भी कुछ अच्छा खाना बनाकर उसको फोन करे कि आज ये खाना बनाए, आना है तो खाना मीन्स खाने आ जाओ, वगैरह वगैरह। थोड़ा उसको वो कर लो और धीरे धीरे उसको अपनी जाल में फंसा दो, प्रेम जाल में, है ना। क्यों? क्योंकि अगर हमारा बच्चा प्रॉब्लम में है और वो सीधा पहला फोन हमें लगाता है तो हमारी जीत है ना। हमें नहीं लगाता, कितना भी हमने कुछ भी कर लिया तो हमारी हार है ना। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, बच्चे तो चलो उड़ गए आराम से अपने लाइफ में सेटल, गॉड्स ग्रेस है, पर मैं और मेरा हस्बैंड का क्या? मेरे हस्बैंड और मेरी मतलब हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या, है ना। तो वहां पर आता है, क्योंकि वो भी इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज ट्रॉमास, हिज चाइल्डहुड ट्रॉमास। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि उनकी इनसिक्योरिटी कहाँ है, उनका इश्यूज कहाँ है, why is he behaving like this the way he is behaving। तो वो उनके चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं। उसके साथ वो हार्मोन्स कितने भी अच्छे स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, बट उन्होंने गलत लेसन्स लर्न कर लिए है ना। तो उनके दिमाग में क्या है, औरत ऐसी होती है, मतलब वाइफ का मतलब ये, लेडी का मतलब ये, और ये जो भी उनके दिमाग में होता है सब गलत होता है। अगर यू आर नॉट हैप्पी विथ योर हस्बैंड, दैट मीन्स उनके दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन है फीमेल को लेकर वो सब गलत है। क्यों? क्योंकि ही डज नॉट अंडरस्टैंड, ही इज लुकिंग टू यू, और हम आपके सामने जिस तरह से देख रहे हैं वो दृष्टिकोण का जो ग्लासेस है वही गलत है ना। सो अगर वो आपके साथ आपकी आंखों में आंखें डाल के he's just crazy after you, so that is the way a man should be। एंड इससे भी ज्यादा और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो गलत धारणा है, सबसे बड़ी गलत धारणा कि मैन आर पॉलीगैमी, मतलब वो बहुत सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हैं, बहुत सारे लड़कियों के साथ अफेयर हो सकता है, और आदमियों को लड़कियों के साथ अफेयर ना हो तो वो आदमी कैसा। ये पूरी बातें टोटली गलत है, टोटली गलत है। क्यों? क्योंकि आदमी को वैसा ही बनाया है, वन वुमन आदमी ही होता है। अगर वो बहुत सारी वुमन के साथ उनका अफेयर होता है या वो सब लड़कियों को ऐसे ऐसे देखते रहते हैं, तो वो रॉन्ग अपब्रिंगिंग का निशानी है 100%। It has nothing to do with being a man, nothing to do with being a whatever hormone thing। उनके कोई हार्मोन इधर उधर नहीं दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं। इट इज अ बैड एटीट्यूड। साइड में किया जाता है ना, बीच में थोड़ी चलाता। इट इज अ बैड, वेरी बैड एटीट्यूड, है ना। तो अगर आपके हस्बैंड या आपके जानने वाले ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो यू विल हैव टू गो बैक टू देयर ट्रॉमास, क्योंकि वहां पे उनकी ऐसी कोई इनसिक्योरिटी है, कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा ट्रॉमा है जिसकी वजह से उनको कंटिन्यूस इनसिक्योरिटी रह रही है, या फिर उनको प्रेम की भूख है, उनको मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, हाँ है ना। और बिकॉज ये जैसे फीमेल्स होती है, वो जब वो परेशान होती है ना, तो वो 4 फीमेल्स को बताती है कि मैं परेशान हूँ। मेल का जब वो परेशान होते हैं तो वो कभी नहीं बताते मैं परेशान हूँ। वो अंदर, तो मेल के अंदर जाना मतलब सुई ढूंढना, घास के अंदर सुई ढूंढना, नहीं जा सकते।
अगर आप कोई साइकोलॉजिस्ट भी, अगर आप साइकोलॉजी के साइकोलॉजिस्ट हैं और साइकियाट्रिस्ट हैं, तो मेल के अंदर घुसना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लड़कियां चुचु चुचु करके बात कर लेती है, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है, और लड़के जो है वो नहीं ओपन अप होते, अंदर 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 वो रहते हैं। और आजकल तो बच्चे इतने, लड़के इतने सेंसिटिव हो गए, ओवर सेंसिटिव, कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है वहां पर। सो ये जो है न्यू जनरेशन, हमारे जो बच्चे हैं, है ना, अभी जो 15 के ऊपर के बच्चे हैं, 15 से लेके समझ लिए 25-30 तक के बच्चे, है ना, अभी जितने भी 15 से 30 के, या समझ लीजिए 30 से और लोअर बच्चे, इतने ज्यादा सेंसिटिव हैं कि हम उनसे वो एंग्री यंग मैन वाला एटीट्यूड नहीं सोच सकते। क्योंकि उन्होंने क्या देखा है, अपनी मम्मियों को परेशान होते देखा है, वायलेंस देखा है, और उन्होंने बोला है कि हम ऐसा बकवास बिहेवियर नहीं करेंगे। विद गॉड्स ग्रेस बॉलीवुड भी चेंज हो गया है, और उनके पास अब हॉलीवुड भी आ गया है, सो दैट उनका एक्सपोजर अलग हो गया है नेचुरली। ये मैं बात कर रही हूँ मिडिल क्लास एंड अबव के क्लास की। सुपर अबव क्लास में भी बेवकूफियां होती है, और लोअर क्लास में भी बेवकूफियां होती है अभी भी, बिकॉज वो लोग तो अभी तक सेंसिटिविटी से बहुत दूर है ना। बट बेसिक जो बातें हैं, boys have become far more sensitive with God's grace, and हमें फिर उनको और sensitively behave करना ही पड़ेगा। But when it comes to our own personal life में जो men हैं, तो उनके साथ हमें एक अलग attitude से बात करनी पड़ेगी। उनके साथ हमें physical activities जो है, जैसे कि डांसिंग है, या जिम है, या और कोई भी एक्टिविटीज है, उसमें पार्टिसिपेशन करवाना ही पड़ेगा, 100% करवाना पड़ेगा। हमारी मम्मियां भी हैं, उनको भी बोलो कि आप अकेले अकेले प्राणायाम मत करो, क्योंकि इतना परेशान हो गई है ना हस्बैंड से, तो वो कट ऑफ होके अपना अकेले अकेले मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम करती है। इट हैज टू बी अ जॉइंट वेंचर, क्योंकि जब तक जॉइंट वेंचर होगा तब तक ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। और नॉट ओनली रिलेशनशिप, आपका हेल्थ, आपके हस्बैंड का हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा, है ना। बिकॉज दैट इज माई मोर कंसर्न। मेरा कंसर्न 30 के नीचे वाले बच्चों के लिए अभी है ही नहीं, बिकॉज हम पेरेंट लेवल पे बहुत अच्छे हैं, गॉड्स ग्रेस। बट हमारी खुद की बात आती है, हमारे पेरेंट्स की बात आती है, तो बातें चेंज हो जाती है। तो हम लोग इन बिटवीन है, we have gone through the traumas, we have become very strong at that, and we have become so strong, इतना ढाल बन गए हैं कि हम वो ट्रॉमा को हमारे बच्चों तक ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं। तो हमने खुद के ऊपर आप अच्छे से पैट योर बैक, कि हमने बहुत अच्छी तरह से इस बार तो शील्ड किया अपने बच्चों को, एंड हम सच में बोल सकते हैं कि वी लव आवर चिल्ड्रन, है ना। ये शाहिदा जी, सॉरी फॉर मेकिंग यू वेट। नहीं, कोई नहीं। आपने जैसे कहा कि हमारे बच्चे जो हैं वो देखते हैं पेरेंट्स को, बिहेव को, फिर वो कहते हैं हमसे कि हम अब जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो हम ये सब नहीं करेंगे, हम अपनी वाइफ्स के साथ ऐसा नहीं करेंगे। और जो उनकी वाइफ्स होती हैं वो कहते हैं जब हम ओल्ड एज में जाएंगे तो हम अपनी सासों जैसा बिहेव नहीं करेंगे। बट कहीं ना कहीं आके जब हम उस स्टेज पे आते हैं तो हम उसी पैटर्न पे चलना शुरू कर देते हैं। फिर हम रोकते हैं अपने आप को कि नहीं, ये तो हम उसी गलत पैटर्न पे जा रहे हैं, हम वापस आए। बट ये एक नेचर है, वो ये चलता रहता है। तो हम इसको कैसे कंट्रोल करें कि ये बिल्कुल ही ना आए हमारी लाइफ में? ये है सेकंड क्वेश्चन। हाँ, मैं ये पूरा करूं, फिर वो सेकंड क्वेश्चन। ओके ओके। तो हमें बेसिकली ज्यादा अवेयरनेस के साथ रहना है। जितना हम अवेयरनेस, जैसे आपने बोला ना कि मैं ये देखती हूँ कि अरे ये तो मैं सेम एटीट्यूड से, या सेम रॉन्ग एटीट्यूड आ जा रहा है मेरे में, तो मैं अपने आप को रोकती हूँ, दिस इज द राइट एटीट्यूड, है ना। और दूसरा, हम लोग खेलकूद को बहुत छोटा समझ ले रहे हैं, बट मैं सच बोल रही हूँ, आप एंगेज करना शुरू करें अपने साथ, खुद फिजिकल बॉडी एक्टिविटी में, खेलकूद में, या जो भी फिजिकल एक्टिविटी में खुद को एंगेज करें। साथ साथ में अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को एंगेज करवाएं। मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा करेंगे
3 मंथ्स अगर आपने ऐसा किया तो आप एक अलग लेवल पे ही अपना पूरा घर का एनर्जी पूरा शिफ्ट, हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छा, बच्चों के साथ रिलेशन अच्छा, खुद के साथ रिलेशन अच्छा, और लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी, फाइनेंशियल रिलेशन अच्छा, सब अच्छा होना शुरू हो जाएगा। बट एक शुरू करना है आपको, फिजिकल एक्टिविटी कोई भी लेवल पे होने दो, शुरू करो फिजिकल एक्टिविटी, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और फिर अपने आप हॉर्मोन्स भी काफी लेवल पे, मतलब हॉर्मोन्स फिजिकल एक्टिविटी से सीधे हो जाते हैं, बेचारे एकदम डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, इवन फॉर फीमेल्स, है ना। तो अगर, क्योंकि आप देखो पहले के जमाने में जो दादियां के ऊपर का जमाना था, तो उनको भी ये सब होता था, बट वो बहुत सहज भाव से निकल जाती थी इस सिचुएशन में से, क्योंकि विद गॉड्स ग्रेस बहुत सारे बच्चे होते थे, तो वो एक अलग ही स्टोरी है। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो उनका फिजिकल एक्टिविटी हमेशा होता था, मेन एंड वीमेन दोनों का मिला के, दोनों की बात करें, दोनों को फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती थी। तो उसकी वजह से क्या होता था, उनके जो हैप्पी हॉर्मोन्स हैं, जो मसल से निकलते हैं, वो कंटिन्यूसली रहते हैं, और कोई ना कोई एंगेजमेंट, फिजिकल बॉडी एंगेजमेंट। अब हम माइंड पे आ गए हैं, जो भी है माइंड से एंगेज होते हैं, तो माइंड में सबसे ज्यादा नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव स्ट्रेस, नेगेटिविटी, वट एवर ये हर चीज होती है। तो उसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे आके हम फंस गए। हमारा बॉडी जो हॉर्मोन्स, अच्छे वाले हॉर्मोन्स बनाता है, उसके ऊपर हमने निर्भीत ही नहीं है। किसके ऊपर निर्भर है, निर्भर है, अरे हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हमारी ओवरीज एंड टेस्टिकल्स के ऊपर। बट उनकी Cheryl, one point. yes, We need to use our energy for a very positive thing. And energy hai, it has to be consumed somewhere or the other. If it is not used in the positive manner, it will go in the negative direction. yes, 100%. So शाहिदा जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे आपने कहा कि कुछ मर्द जो हैं वो अपनी फीलिंग्स, अपना स्ट्रेस जो भी उनका अंदर चल रहा होता है वो ओपन अप नहीं करते, तो हम उनको किस तरह से क्या ऐसा करें कि वो ओपन अप हो और अपना स्ट्रेस इजीली एटलीस्ट अपनी वाइफ से शेयर करें, या चलो अपनी मदर से शेयर करें, क्यों नहीं कर पाते वो लोग? क्यों? कॉन्फिडेंस की कमी। अब मैं आपको और डीपर लेवल पे ले जाती हूँ, मेल एंड फीमेल के बारे में। देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लाइज विद यू द पेरेंट, द प्रॉब्लम इज नॉट, डज नॉट लाई विद द चाइल्ड हियर। You have to be friendly, you have to make an environment that the child comes, आपके पास खुद आए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है या मेरे को ये डिस्कस करना है। एग्जैक्टली आपने बहुत अच्छी तरह से आंसर दिया। तो क्या है कि बिकॉज मेन ऑफिशियली एंड बाय देयर बर्थ आर प्रोटेक्टर्स। जब प्रोटेक्टर का मतलब मैं प्रोटेक्शन करूंगा, अब प्रोटेक्शन किस चीज का करता हूं, हर एक चीज का, है ना। तो उनके अंदर ये प्रोग्राम ही है प्रोटेक्शन वाला। अब उसमें जब कोई फीमेल को प्रोटेक्ट करने की बात नहीं होती, तो अपने फीलिंग्स को फीलिंग्स की तरह प्रोटेक्टिव हो जाता है। तो अब यहाँ पर प्रोटेक्शन किससे होता है, जहां से उनको लगता है मुझे हार्म होगा। प्रोटेक्शन किसके, मतलब प्रोटेक्शन डाउन कब हो जाता है, जब उनको लगता है कि नहीं यहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूं। तो यहाँ दिस इज द की, द मोमेंट वो आपको सामने वाली पार्टी समझता है, अपना बेटा हो या हस्बैंड हो, वो आपको सामने द ऑपोजिट पार्टी समझेंगे, तो वो हमेशा आपके सामने प्रोटेक्शन शील्ड में रहेंगे, कुछ बताएंगे ही नहीं। द मोमेंट वो आपको अंदर वाला फैमिली समझेंगे, तो हर चीज नीचे कर देंगे, मतलब सब प्रोटेक्शन शील्ड डाउन हो जाता है, और फिर ये सब कुछ आपको बताते हैं। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम एरिया भी है, जैसे मैंने आपको कहा मेन आर मैनिपुलेटर्स, है ना। ओरिजिनली मेन आर मैनिपुलेटर्स। तो यहाँ पर जब उनको रियलाइज होता है, स्मार्टनेस भी होती है ना, उनको रियलाइज होता है कि मैं मीठी मीठी बातें करूंगा तो लड़की ऐसा हो जाएगा, मेरी बीवी को ऐसा मैं मैनिपुलेट कर लूंगा। यहाँ पे आप यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर कि आप मैनिपुलेटेड तो नहीं हो रहे हैं। और कभी कभी उनको वो स्ट्रॉन्ग, no Cheryl, it is not called manipulate, it is managing the situation.
या वो व्हेन इट कम्स टू अ जेंटलमैन, बट जब बॉयज की बात होती है तो दे आर मैनिपुलेटर्स. If we are talking upon gentlemen, they are managing the situation. At the same time, boys attitude होता है ना, वो सिर्फ abusive attitude होता है. वो आपको blackmail करेंगे, वो आपको वो करेंगे, चू करेंगे, सब कुछ करेंगे manipulate करने के लिए. तो you have to understand कि क्या आप एक man को देख रहे हो या एक boy को देख रहे हो. अगर boy को देख रहे हो तो आप manipulate मत हो जाना. आप उसको, भले वो बोल रहा है मेरा इतना बड़ा प्रॉब्लम है, वो खुल के आपके साथ बात भी कर रहा है, तो ही इज जस्ट ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू. यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर, है ना. एंड सेम चीजें आप अपने बच्चों को भी सिखाएं, बॉयज को स्पेसिफिकली, कि किस तरह से हाउ टू बिकम सेंसिटिव टुवर्ड्स फीमेल्स, यू नो. कि और प्लीज आपके साथ जितना भी अब्यूज हुआ है वो धीरे धीरे करके अपने लड़कों, बॉयज को और गर्ल्स को भी बताओ एज अ मदर कि मुझे ऐसा दर्द हुआ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, so that they become sensitive towards other females and other people and other animals, and then they don't abuse, they don't become abusers. You understand? तो यहाँ पे you have to be very very intelligent and at the same time sensitive. Yes, Manisha. ये ज्यादा मदर ज्यादा करती हैं, सॉरी टू से. क्या करती है? मैनिपुलेट. ये हाँ, बच्चा अगर जिद कर रहा है, उसे पता है कि मैं रोऊंगा चीखूंगा तो मेरी माँ जो है वो ये काम कर रही है, और माँ करती है. वो इग्नोर नहीं करती कि अगर वो रो रहा है, किसी चीज के लिए जिद कर रहा है, तो वो स्ट्रांगली एक्शन ले उसके लिए. तो बच्चा उस चीज को आदत बना लेता है कि मैं चीखूंगा, मैं 2-4 चीजें उठा के फेंकूंगा तो मेरा काम हो जाएगा. तो वही हैबिट जो है वो आगे जाके डेवलप हो जाती है, और फिर वो अपनी वाइफ्स के साथ भी वही बिहेव करते हैं. हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस. अब करना क्या है वाइफ को? सबसे पहले तो वाइफ को शांत हो जाना है, ठीक? लाइक अ मदर? नहीं, नॉट लाइक अ मदर, जस्ट शांत हो जाओ आप. आपके सामने कोई बेटा हो या आपका हस्बैंड हो और डांस कर रहा है, तांडव नृत्य, नो प्रॉब्लम. वो चिल्ला रहा है, नो प्रॉब्लम. वो चीख रहा है, नो प्रॉब्लम. आप शांति से बैठ जाओ, शांति से, and just let him do what he has to do. 2 मिनट के बाद उनको पता चल जाएगा कि मैं कुछ भी तांडव नृत्य करूं, ये लेडी इज नॉट गोइंग टू बी मैनिपुलेटेड. तो वो 2 मिनट में शांत हो जाएंगे. एंड देन डोंट टॉक टू हिम. आप उनसे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बात मत करें, क्योंकि दिस इज नॉट द वे वी टॉक इन दिस हाउस. सो यहाँ पर पूरे ये जो वर्कशॉप है हमारा, ये जो सेशंस हैं, फीमेल्स एंड हॉर्मोन्स, मेल्स एंड हॉर्मोन्स, यहाँ का अब क्रक्स आ रहा है कि अब चाबी आपके हाथ में है. अगर आपको अपना रूल, ये आप कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं शाहिदा जी अभी? मैं विशाखापट्टनम. नहीं, एक पर्सनल, लाइक मेरा घर, ऐसा अपना घर, अपने घर में, है ना. मनीषा जी कहाँ रह रही है आप? हाँ शरल जी, आपने मुझसे कुछ पूछा? हाँ, मैंने पूछा आप कहाँ रह रही है. मुझे एरिया का नाम नहीं पता, पर ये जो 4 दीवार है उसको क्या बोलते हैं? रूम. आप रूम में रह रही है? अभी नहीं, मतलब अभी आप आई एम सॉरी, क्योंकि मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही आप, क्योंकि काफी कुछ छूट गया है. अपना घर है, हमारा घर है, अपना घर है. Yes, that's what I was looking. Thank you, Shanu ji. No problem, Manisha ji. One second, we have Monica Soni ji. She has to go, and may I invite Monica? Give me a moment. Monica ji, please give me a moment. Yeah, Shanu ji, कहाँ रह रही है आप अभी? मैं बहुत जगह रह रही हूँ. ऑफिस वर्क, माय ग्रुप वर्क. ये 4 दीवार को आप क्या बोलेंगे? ये मेरा ऑफिस है. हाँ, बट ये मेरा ऑफिस कहाँ है? घर के अंदर है. तो क्या बोलेंगे आप? ऑफिस कम रेजिडेंस. हाँ, घर ही बोल. हाँ, घर बोलेंगे, मेरा घर बोलेंगे. अरुणिमा जी, 4 दीवार क्या है? मेरा घर है. Exactly. तो अब आएगा रियल डायलॉग. मेरा घर
मेरा रूल। Right. ये है रियल सॉल्यूशन। बॉयज डोंट नो, men have not become men। अगर घर में डांस वांस होता है, अननेसेसरी ड्रामा होता है, दैट मीन्स इट इज नॉट द, एक सेकेंड, सभी के म्यूट करने पड़ेंगे माइक्स मुझे। ओके, सो अगर आपके घर में क्लेश हो रहा है तो दैट मीन्स कुछ गलत है। और ये कुछ गलत को कौन सही करेगा? सिंपल एक डायलॉग, एक एटीट्यूड। व्हाट इज दैट एटीट्यूड? मेरा घर मेरा रूल। ठीक, द मोमेंट यू स्टार्ट सेइंग दिस, और रूल्स में स्ट्रिक्टनेस नहीं बट इंटेलिजेंस होनी चाहिए, जिसमें आप बोलेंगे आज के बाद हम हर सैटरडे को साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। क्या रूल बनाना है? हर सैटरडे हर संडे को वी आर गोइंग टू स्पेंड टाइम टुगेदर। हर बर्थडे को वी हैव टू बी फैमिली टुगेदर। आप फ्रेंड्स के पास जाओ, नो प्रॉब्लम, बट हम लोग केक घर पे काटेंगे, एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करो हर एक दिन को, सेलिब्रेट करो हर एक मोमेंट को, एंड एंजॉय करो एक दूसरे की कंपनी। बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग घर जब रियल घर होता है, तब ये बच्चा और या तो आपके हस्बैंड या तो आप खुद अपने करियर में एपिटॉम तक पहुंच सकते हैं, बहुत हाईएस्ट ऑफ पीक तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि अब ये घर। Cheryl, can I interrupt for a minute? We have Yes. got Monica Soni, her session's coming next, so she needs Yes, to speak Monica. just for 1 minute. Yes, मोनिका जी। She's there? Shanu? She seems so. She's not logged out. She's there. She's on mute. मोनिका जी? Shanu, call her. Okay, so I will continue till Shanu ji. Yeah, please continue. Yeah, when she'll come, then you can. Okay, so yeah, so this is the ground rule, मेरा घर मेरा rule, and then you have to be first very introspective कि आप तो खुद तो गलत रूल्स नहीं बना रहे हैं, आप सासू माँ वाला बिहेवियर तो नहीं कर रहे हैं, है ना? बिकॉज हम मेरा घर मेरा रूल में हिटलर एटीट्यूड नहीं ला सकते। उसमें हम इक्वालिटी एटीट्यूड लाना है, हमें इक्वालिटी का एटीट्यूड लाना है, जिसमें एवरीबडी इन द हाउस हैज इक्वल राइट्स। वो छोटा बच्चा हो या पापा हो, या मैं हूं या बेटी हो, या हमारा डॉग भी होने दो, सबके रूल्स, सबके राइट्स इक्वल राइट्स, और सभी को गेम्स तो खेलना ही पड़ेगा, खाना स्माइल करके खाना ही पड़ेगा। अगर मान लेते हैं मेरे बच्चे को मेरा फूड अच्छा नहीं लगता, मतलब मुझे जो अच्छा लगता है वो मेरे बच्चे को अच्छा नहीं लगता, तो कोई बात नहीं, 4 दिन है हफ्ते में, सभी को एक दिन का बेस्ट फूड, मतलब उनका फेवरेट फूड आज बनेगा, और बाकी सबको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। ये हो ही नहीं सकता कि हर रोज बच्चों के ही मनपसंद खाना बने। तो इस तरह से आप दिमाग लगाकर अच्छे अच्छे रूल्स बनाएं और अच्छा लाइफ अपना सेटल करें। एंड यू ऑलवेज रिमेंबर, जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो और आपके बच्चे ने तांडव नृत्य कर लिया, आप शांत हो जाएं, उनको जो करना है करने दीजिए, और मन में एक ही डायलॉग बनाए, माई हाउस माई रूल, एंड आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरी पर्सन इन माई फैमिली, और विथ हैप्पीनेस। सबके सब हैप्पी होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि कोई भी आके मुझे मिसबिहेव करे और चले। ठीक? Okay, so any other questions or anything else to be said? Just one small question. Yes. जैसे आपने बताया था वो menstrual cycle के दौरान जब मंदिर में नहीं जा सकते, these things we can take it in the positive way. That I agree, as long as you are at home or something. But there have been situations where like someone has gone on a pilgrimage and suddenly she has gone long distances, traveled long distances, उसको हो गया सडनली, उसको आगे पीछे कुछ डेट्स के हो गए, और वो बेचारी फिर क्या, शी विल नॉट अटेंड द प्रेयर, पूजा नहीं कर पाएगी, वो चली आएगी ऐसे ही, जबकि होल ग्रुप इज डूइंग द पूजा, एवरीबडी इज एंजॉयिंग। तो उस टाइम में बहुत दर्द होता है, यू नो।
हाँ At ये that time you feel very sad that, you know. So I feel कि उस time में you should just give it up and tell God that this has happened and continue with the puja. I don't think the rules should be that rigid that you cannot, you know, we should be flexible nowadays. yes, flexibility is the answer to this, but यहाँ पर I cannot really comment on a public media Yeah, platform. yeah. Give It is a personal decision that yes, time. it's a personal decision. One should take her own personal. And as a spiritual answer giver or a guider or whatever you call, it is God loves you unconditionally. Yes. Periods हो ना हो, कुछ हो ना हो, मैं And it's गुस्सा a natural process. It's nothing that we have done wrong or something. It's a Yes, natural yes. process given So- by God. It's a God's Yes, gift. it is a God's gift, and it is real God's gift, you know. Yes. So just embrace your personal situation and do what you feel like. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम जब ऐसी सिचुएशन में मतलब वेकेशन पे भी जाते हैं और अगर पीरियड्स हो जाते हैं तो हम अंदर से भी क्रैंकी हो जाते हैं, तो नॉर्मल भी हम लोग हैप्पी बिहेव भी कर सकते हैं. Yeah. तो we may need a break also. Yes. बट शरण जी, ये रूल्स जो हैं ये हमारे नहीं बनाए हैं, ये गॉड के ही बनाए हैं, नहीं जिन्हें नहीं हमें नहीं फॉलो God ने ऐसा करना rule है. नहीं 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 नहीं, ये गलत इंफॉर्मेशन है. Yes. गॉड ऐसे रूल गॉड कभी कोई रूल और रेगुलेशन नहीं बनाता. अच्छा मुझे बताएं, आप मुझे एक चीज बताएं, सिर्फ फीमेल ह्यूमन फीमेल से थोड़ी ना मेंस्ट्रुएट करते हैं, कुत्ते बिल्ली सब मेंस्ट्रुएट करते हैं. Yes. और वो कहाँ होते पूरे ब्रह्मांड में, ऐसे ही घूमते रहते हैं, सब लोग मेंस्ट्रुएट कर रहे हैं. और मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा, रिप्रोडक्शन कैसे होगा? Yes. और भगवान It's a कैसे natural बोल सकते हैं कि आप रिप्रोड्यूस कर रहे हो तो आप गलत हो, जब भगवान रेपिस्ट को गलत नहीं बोल रहा है और तो मेंस्ट्रुएटेड वुमन को गलत बोल रहा है, क्या बात है? गलत नहीं बोल रहे हैं. हम अपने फायदे के लिए बनाते हैं, जो हमें सूट करता है हम वो बनाते हैं. Yes. It is man-made. गलत नहीं बोल रहे. वो सिर्फ एक रिस्पेक्ट वे में कि ये आपकी एक पाक साफ जगह है, आप उस प्रेमिसेस में नहीं जाएं, बाकी आप बाहर बैठ के प्रे कर सकते हैं, सिर्फ उस It is personal प्रॉपर decision. एरिया में नहीं जाएं. पाक साफ जगह में नहीं जाना, ठीक? जी. तो पाक साफ जगह भगवान है तो उन्होंने बनाया, बाकी सब शैतान ने बनाया. जो नापाक है वो शैतान ने बनाया. तो अगर नापाक चीजें शैतान ने बनाई तो आई विल टेल यू कि भगवान से ज्यादा स्ट्रॉन्गर शैतान है फिर, क्योंकि उसने बाकी सब बनाया, एक छोटा सा मंदिर किया जो भगवान ने बनाया, बाकी सब शैतान ने बनाया. तो फिर घर में मंदिर की जगह पे वहां पे हम क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं बैठते? वो अभी जा सकते हैं if you are feeling the need to pray. सब शायदा जी वो सब एनर्जी की बात है, मैं आपको बताती हूँ. हमने अपने हिसाब से बनाया है, ये भगवान ने कभी नहीं बोला. भगवान कहता है सारे दिन बराबर है, सब लोग अच्छे हैं. और ये जो सिस्टम भी बनाया ना मेंस्ट्रुएशन के, भगवान ने बनाया, इट इज नॉट मैन अडैप्टेड. हाँ, वो मेंस्ट्रुएशन is a different story and it is a different culture. पहले नहाना नहीं होता था हर रोज, पहले प्रॉब्लम होती थी, हाइजीन का प्रॉब्लम होता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी. आप अभी आए हैं सैनिटरी नैपकिन्स, इससे पहले कहाँ सैनिटरी नैपकिन्स हुआ करते थे मेरी जान. तो आप हर एक चीज को दृष्टिकोण से देखो. और पाक साफ, पूरा ब्रह्मांड पाक साफ है. अगर एक नापाक चीज मुझे दिखा दो, इवन पीरियड्स पाक है, हर एक चीज पाक है, मतलब देयर इज नथिंग अनापाक. मतलब मुझे नापाक भी पाक है कुछ नापाक जैसा है ही नहीं. शैतान भी उतना ही पाक साफ है. तो क्योंकि परमात्मा इज द मेन पर्सन. मतलब आई डोंट नो कौन से भगवान की बात कर रहे हैं जो सिर्फ मंदिर मस्जिद में इतने छोटे छोटे मंदिर मस्जिद बना के बैठ जाते हैं. नहीं, वो हमारे दिमाग की पैदाइश. Can I answer? Yes. Monica Soni is there. She wants to. Yes, Monica ji. Regarding this, please, Monica. You're on mute, Monica. I thought Shanuji is going to say something. That's why I was waiting. No. Monica, you're right. Yes. So I would like everyone, and thank you for a wonderful session, Cheryl ji. It was a nice one, nice information. And yes, I will be holding a session on
Huh? Tell about yourself. Okay, yes. My name is Monica Soni. I am a clinical nutritionist as well as a yoga therapist and a face yoga guru. So I will be hosting a session on upcoming Thursday on anti-aging. It's an anti-aging session. So it's useful for men and women both. And हम 25 अगर 25 के ऊपर की भी महिलाएं हैं, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, if your daughters also, then you can also ask them to join. It's very very beneficial. Face is something we neglect, तो उसके मसल्स के लिए बेसिकली हम एक्सरसाइज करेंगे. So do join. Thank you. Thank you. Thank you. I am going to Yes, join your Sharon. session. Thank you. All the best for your session. Thank you. Shanu ji, you were saying that you wanted to give some answer. Yes, now that discussion is already going in the other direction, that why women, when they are having periods, why are they not allowed to visit any temples? So it has nothing to do with जो भी आपके myths हैं या जो भी conditioning में बताया गया है. There's a scientific reason to it. कि हम सब believe करते हैं we all have aura, one electromagnetic field around us, and it has 7 layers. Of course, एक पूरा सेशन, एक पूरा चैप्टर हो सकता है उस पे. और एक लेयर है जो इमोशन से कंट्रोल होती है. गुड इमोशंस, वी आर हैप्पी, वो स्ट्रॉन्ग हमारा ऑरा करती है. और जब नेगेटिव इमोशंस, वी आर एंग्री, वी आर जेलस, वी आर in self-doubt, we are criticizing anybody, we are criticizing ourselves, तो वो weak हो जाता है. Number 1. Aura एक और जगह से weak होता है when we are hurt. अगर mentally hurt है तब तो aura weak होता ही है. When we are physically hurt, we are bleeding, तब भी aura hurt होता है because the entire body is working to heal that wound. उसको हील करने में जो कॉस्मिक एनर्जी भी पार्ट ले रही है और पूरा बॉडी का सिस्टम, पूरी एनर्जी उसको हील करने में जा रही है. तो जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो थोड़ा वीक हो जाता है. तो जब ये 5-7 days होते हैं, एंड यू ऑल नो इमोशनली वी आर नॉट इन अ वेरी हैप्पी मूड. आई डोंट बिलीव पर्सनली, एज अ रेकी चैनल आल्सो आई डू नॉट बिलीव इन दैट. But yes, some people, if they believe, yes, आप negative emotion में हो, आप cranky हो, you are not happy, you are uncomfortable, messy, sweaty, name whatever, वो आपका एक emotional field weak हो गया. Then आपको पता है कितना bleed होता है, so पूरा body, पूरा system busy है, तो आप weak हो. तो जब आप मंदिर जैसी जगह जाते हो, सारे मंदिर positive नहीं होते. मंदिर कौन लोग जाते हैं? कोई दुखी है, कुछ मांगने गया है, या किसी भगवान को ब्राइब देने गया है. तो सब लोग खुशी होकर या पॉजिटिव मोड में नहीं जाते. और बहुत लोग मंदिर इसलिए जाते हैं कि अपनी नेगेटिविटी छोड़ के आए और पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेकर आए. तो जब आप डाउन है, आप पीरियड्स में हैं, आप नेगेटिव उसमें हैं, और जब आप ऐसे जोन में जाते हैं तो चांसेस है कि आप किसी की नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लें. चांसेस हैं, ऐसा होता नहीं है, चांसेस हैं. दैट इज द रीजन इट इज सेड कि आपको कुछ नहीं करना चाहिए. आप मंदिर भी मत जाओ और कहीं मत जाओ. रही बात ट्रैवल की, ट्रैवल क्या, मेरा तो फास्टिंग में करवा चौथ हो और एक हमारा गुरु नानक जी का होता है. द होल डे आई फास्टेड, नो फूड, नो वाटर, नथिंग. मोमेंट दैट कम्स कि मुझे पूजा करनी है, इट हैपेंस. वो ऐसा नहीं है कि मैं पूजा नहीं करूंगी, आई सिट इन पूजा. बट वो जो अगर जो भी रिचुअल है, आई टेक हेल्प फ्रॉम माई हस्बैंड, क्योंकि वो बिलीव करते हैं. यस, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम, हिज बिलीव्स, इसमें कुछ गलत नहीं है. तो इसका यही एक साइंटिफिक रीजन है. प्लीज इसको किसी और चीज से लिंक नहीं करें. दैट्स ऑल. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. ये बहुत can I say something? yes अनु जी. थोड़ा सा मेरा अपना भी एक पर्सनल व्यू है रिगार्डिंग द पीरियड्स. द women are in the purest form. They are equivalent to living goddess, you can say that. And but during that time her energy flows downwards, and
whatever the temples in our house or wherever we go, energy always flows down to upwards, right? And when we go to the temple, there is the, the effect of opposite energies happens. That is why, and that may create different other issues like chronic pains and different illusions. That is why this is the reason they are prohibited not to go. And even I have heard about that, जैसे हम उस प्योरेस्ट फॉर्म में होती है वुमेन, तो जो भी मूर्ति हम जिसको रोज पूजा करते हैं, राइट, उसमें एक स्थापना होती है ईश्वर की, ठीक है। और जब हम इस पीरियड में उस मूर्ति के सामने बैठते हैं, तो वो मूर्ति का जो असर होता है वो उस फीमेल में आता है और वो मूर्ति लाइफलेस हो जाती है। उसका जो प्रभुत्व होता है वो कम हो जाता है। मीन्स देयर आर सम साइंटिफिक रीजन। ऐसा नहीं है कि ये टैबू की तरह हम पे थोपा गया है। सो वन शुड नॉट टेक इट अदरवाइज। यदि हम उसको साइंटिफिकली एनालाइज करेंगे तो हम उसको अदरवाइज कभी लेंगे ही नहीं। एंड दिस इज द पीरियड व्हेन यू आर मेंट टू टेक रेस्ट, फिजिकली रेस्ट। Yes. Okay. So this is all about sorry if I went. Very nice, very very nice. और इसमें मैं थोड़ा और ऐड करना चाहूंगी, जो हमारे पहले के जमाने के मंदिर थे, आज के जमाने की मंदिरों की बात नहीं चल रही, जो न्यू एज है, जो पहले के जमाने के मंदिर थे वो कभी भी ऐसे ही कहीं पर भी नहीं बनाए जाते थे। वो हमेशा मदर अर्थ के एनर्जी चैनल्स जो हैं, जैसे हमारे बॉडी में नाड़ियां होती है और हमारे ऑरा में भी नाड़ियां होती है, और ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ये तो मेन है, पर बहुत सारी काउंटलेस नाड़ियां हैं और उनके मींस उनके इंसेशन पॉइंट्स होते हैं, मतलब 4 नाड़ियां इधर उधर जा रही है। हमारे पास वाटर नाड़ियां भी होती है, मतलब अर्थ के अंदर पानी की नाड़ियां भी होते हैं। जैसे हम लोग नदियां देख रहे हैं ऊपर, वैसे नदियां नीचे भी है। और सिमिलरली एनर्जी नाड़ीज भी बहुत सारी है, और हमारे पास अभी वो इतना नॉलेज नहीं है। पहले के जमाने में इंडियन कल्चर में बहुत डीप नॉलेज वाले लोग थे, तो वो क्या कब वहां पर मंदिर क्यों बनाते थे? बिकॉज वो, और पिरामिड्स भी है ना, बिकॉज वो इज द मेन पॉइंट जहां पर जो नाड़ियां हैं वो सारी दिशाएं चेक करके फिर बनाते थे। हाँ, वो तो बहुत छोटी बात है। हम अंदर भूमि की अंदर की, मतलब जियोग्राफिकली अंदर की ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल नहीं, ये नाड़ियां किसी को दिखाई नहीं देती। ग्रेविटेशनल पुल तो हर जगह इक्वल होता है, कहीं एक्स्ट्रा ज्यादा कहीं कम ऐसा नहीं होता, बट एक्सेप्ट नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो बात अलग है। बट हम लोग जो है वो, अगर आप देखेंगे तो एनर्जेटिक नाड़ियों की बात कर रहे हैं, उसमें हम कुछ काटेंगे तो हमें कुछ दिखेगा नहीं, पर वो वहां से एनर्जी फ्लो होता है, तो वहां पर मंदिर बना दिया जाता है। और जहां पर जब हम वो जगह पे बैठते हैं, वो परिसर में बैठते हैं, वो मंदिर में बैठते हैं, और उसके ऊपर देखिए ऑलवेज इट्स अ डोम, और हमेशा एक कोनिकल डोम होता है। तो इट इज लाइक एक मदर अर्थ के ऊपर एक कोनिकल डोम, और इट इज लाइक अ रिसेप्टर, लाइक पहले के जमाने का एंटेना डिश एंड रिसीवर एंड जो ट्रांसमिट करता है वो वाला, तो वैसा हम बना देते हैं। और वहां जाके हम पहले तो शांत हो जाते हैं, और फिर हम जब ऑटोमेटिकली मेडिटेशन में जाते हैं, हम रियल मंदिरों की बात कर रहे हैं, और वहां से जो भी हम मांगेंगे हम अच्छी तरह से उसे मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अब क्या हो रहा है, जब हम पीरियड्स में होते हैं फीमेल, जैसे मैडम ने बताया कि फीमेल बहुत पावरफुल है, शी इज द गॉडेस। अब दिस द गॉडेस, उसका जो ओरिजिनल काम है रिप्रोडक्शन, और वो क्या करती है, पूरी एनर्जी, पूरे महीने की एनर्जी एक बच्चा बनाने में वो दे देती है। तो उसकी एनर्जी लेवल पे वो फिजिकली शी बिकम्स वीक, बिकॉज वो वीक क्यों है, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी एनर्जी हैंडल नहीं कर पा रही है। हम इतना बोझा उठाएंगे तो थक जाएंगे ना,
तो पूरा बॉडी एक हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमें नया बच्चा बनाना है। तो उसके लिए हम ये पूरा प्रोसेस करते हैं। और वो एनर्जी अगर हम मंदिर में जाते हैं तो बिकॉज ऑलरेडी वो एनर्जी सर्किट्स में ही बना हुआ है, तो वो हमारी एनर्जी ज्यादा होती है और एनर्जी पुल हो जाती है। जैसे अंजू जी ने कहा, एनर्जी गोज इनटू द मदर अर्थ, है ना। तो ये जो मदर अर्थ में चली जाती है, इसलिए क्या होता है जब फीमेल्स में ये इश्यू आ जाता है कि जब हम पीरियड्स में हो तो हमारी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है। अगर हम ऐसे कोई जगह पे जाते हैं जहां पे एनर्जी पुल एंड वो एनर्जी ओपन होती है, जहां पर चैनल्स होती है, एनर्जी चैनल्स। तो इस तरह से हम, इसलिए बोला गया है कि देयर आर सम टेम्पल्स, क्योंकि वो इतने ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी और हाई वाइब्रेशंस वाले टेम्पल्स होते हैं, जिसमें अगर कोई फीमेल पीरियड्स में होती है, वो जाती है, तो उसी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसकी पूरी एनर्जी फट करके वो चैनल ओपन है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स जो है वो ओपन होते हैं, अगर छुएंगे तो हमें तो शॉक लगेगा ना। तो वैसी सिचुएशन हो जाती है कि हमारी पूरी एनर्जी ड्रेन आउट हो सकती है, और फिर हमारे लिए इट इज नॉट गुड, है ना, फॉर फीमेल्स। इसलिए वो मना किया गया है। बट यहाँ पर द मोमेंट आप अगर एक लेवल पे, इसमें क्या होता है, इफ यू अगर पीरियड्स आ ही गए और हम लोग पिलग्रिमेज पे हैं, अगर हमने मन में बात कर ली भगवान से, तो ऑटोमेटिकली द यूनिवर्स इज ऑलवेज देयर टू टेक केयर ऑफ अस, है ना। 100% गॉड इज देयर टू टेक केयर। यूनिवर्स प्रोटेक्ट। हाँ, 100% प्रोटेक्शन, 100%। आपको पता ही नहीं कि आपके आजू बाजू कितने भगवान हैं। अगर अगर भगवान लोग वो बोले कि ठीक है मैडम, हम लोग आ जाते हैं, दिखना शुरू हो जाते हैं, आप अगर अपना हाथ पकड़ेंगे ऐसे इतना दूर और बोलेंगे कि ओके भगवान शो योरसेल्फ, तो मैं अपना हाथ नहीं देख पाऊंगी। उतने सारे हैं मेरे और मेरे हाथ के बीच में भगवान। मतलब काउंटलेस, है ना। सो बट स्टिल चेरिल, ये चीज मैंने एक्सपीरियंस की थी जब मैं 4 धाम की यात्रा पे गई थी, और मेरे मन में एक फीलिंग थी कि बिकॉज इट वाज ड्यू, राइट, आई कंसल्टेड अ लेडी डॉक्टर. शी प्रिस्क्राइब्ड मी अ मेडिसिन टू पोस्टपोन इट फॉर few days. So I took that medicine. You have to take it in advance so that you don't met any accident with that. और उससे बहुत स्मूथली, कुछ नुकसान नहीं होता, कुछ भी नहीं होता. Alternatives are always with us. थोड़ा सा हमें प्री प्लान करना पड़ता है. एक्सीडेंटली हम कहीं पहुंच जाएं और ऐसा कुछ हो जाए तो बात अलग है. तो it did not spoil my throughout journey. I enjoyed, and after that I just had those periods. चलो गॉड्स ग्रेस है, बट हर बार वी कैन एग्री अंजू जी. अगर आप प्लान करके कोई ऐसी जगह जा रहे हैं तो आप ये मेडिसिन इस तरह से यूज कर सकते हैं. हमारे उसमें भी हमें अलाउ है कि हम इस तरह की मेडिसिन यूज करके अपना उस जर्नी को सक्सेसफुल और अच्छे से हैप्पीली कर सकें. Very nice. So any other questions regarding to the boy hormones and boys and hormones and turning boys into men? So एक और जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ दिस वर्कशॉप बताया था कि when it comes to children we are going to understand this 8 years या 6 years आपको, तो because everything is going down, बहुत जल्दी hormonal changes आ रहे हैं बच्चों में, तो हम लोग 6 to 8 years की बात कर रहे थे because every individual is individual in itself. तो उसके पहले वो बच्चे ही होते हैं ना, उनमें फीमेल एटीट्यूड होता है ना मेल एटीट्यूड होता है ना. फीमेल और मेल का मतलब सेक्सुअलिटी से मतलब है. बच्चे इनोसेंट हैं, छोटे छोटे हैं और हाईली इनोसेंट है, उनको और कुछ नहीं लेना देना. तो सबसे पहले तो हम बच्चों को बच्चे बने रहने दें, ज्यादा मैच्योर ना करें. सेकेंडली, जैसे जैसे वो बढ़ रहे हैं उनकी लाइफ में, तो उनकी लाइफ को एक्सेप्ट करें कि वो जो वो प्रोसेस से जा रहे हैं, तो उनको एडुकेट भी करे और उनको एक्सेप्ट भी करे. और उनको कंफ्यूजन होता है बिकॉज उनको पता ही नहीं चल रहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना, ऐसा कैसे थॉट्स आ रहे हैं, ऐसा कैसे चीजें हो रही है. तो इसमें एक ही बेस्ट आंसर है कि बी फ्रेंड्स विथ चिल्ड्रन, है ना. पेरेंट भी बनना है, एट द सेम टाइम चिल्ड्रन भी बनना है. इट इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, बट
It is a job of a parent to do everything for the child. So सब कुछ एक साथ में करना पड़ेगा. पेरेंट भी बनना है, फ्रेंड भी बनना है, गाइड भी करना है, और कजोल भी करना है, और गाजर भी दिखाना है, और स्टिक भी दिखाना है, और सब कुछ एक साथ में करना है. बट एट द सेम टाइम जितना आप इन्वॉल्व करोगे बच्चों को गेम्स में, पढ़ाई लिखाई में, और उनकी एनर्जीज को चैनलाइज करोगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जो भी हार्मोन की शुरुआत होती है, इट इज टू रिप्रोड्यूस. तो आज के जमाने में बिकॉज हम फिजिकल बॉडी पे मतलब फिजिकल एक्टिव नहीं है, बिकॉज हम खेत नहीं जोत रहे हैं, हम कोई कारपेंटरी का काम नहीं कर रहे हैं, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, हम मेंटल एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं. तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि हम हमारी एनर्जीज और बच्चों की एनर्जीज को बहुत अच्छी तरह से चैनलाइज करें, और दैट इज द की. उनको कोई ना कोई एक्टिविटी में ऐड करना है. खेल कूद तो कंपलसरी ही होना चाहिए दोनों बच्चों के लिए, मेल हो या फीमेल चाइल्ड हो, दोनों बच्चों के लिए, और आपके लिए और आपके हस्बैंड के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है खेल कूद में अपने आप को एंगेज करना. जैसे ही आप ये करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके सभी हॉर्मोन्स और आपके बच्चों के सभी हॉर्मोन्स चैनलाइज हो जाएंगे, एंड लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी. टेक माय वर्ड फॉर इट, है ना. तो वहां से शुरू कर देंगे. जैसे मनीषा जी का छोटू बेबी है, आप उसको कुछ भी गेम खेलना शुरू कर दो, उससे आधा टाइम तो दे विल स्टॉप गोइंग इनटू द मोबाइल थिंग, क्योंकि मोबाइल इज जस्ट, देखो वो तो काम, उनका काम ही है नई नई चीजें सीखना, वो उम्र ही सीखने की है. तो आप मोबाइल से सिखाओगे तो मोबाइल से सीखेंगे, आप खेलकूद से सिखाओगे तो खेलकूद से सीखेंगे. तो उनके साथ आप भी एंगेज हो जाइए खेलने कूदने में, उनके साथ फिजिकल एक्टिविटीज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे बहुत अच्छा बॉन्ड बनेगा, एंड यू विल सी टू इट दैट आपका 3 महीने में ही आपके बच्चे चेंज हो जाएंगे. फ्रस्ट्रेशन कम, डिप्रेशन कम, सब कम. थैंक यू शेरल जी, वंडरफुल टिप. यस यस. और किसी को कोई क्वेश्चंस पूछना हो, इंक्वायरीज हो, यस आप यस. पूछ सकते हैं. मैं शानू जी का थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. जो मैं बोल नहीं पा रही थी वो उन्होंने उस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और मेरे ख्याल से सबको उस चीज का समझ भी आ गया होगा. तो और शेरल जी की तो बात ही अलग है, उनका तो समझाना और बताना बिल्कुल अलग ही है, और हम बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत अच्छा अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करते हैं. और न सिर्फ हम अपने लिए करते हैं बल्कि हम अपने क्लाइंट्स को भी उस इन सब नॉलेज से अच्छे से गाइड कर पाते हैं. थैंक यू सो मच, वंडरफुल सेशन. थैंक यू. दोनों सेशन बहुत अच्छे थे आपके. थैंक यू. एंड थैंक यू आशु जी, मनीषा जी एंड शानू जी, जो इतना एफर्ट्स डालते हैं और इस चीज को इतना सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म दे के और उसको सब तक पहुंचाते हैं. थैंक यू सो मच. देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे ग्रुप में एक से एक हीरे हैं. हम कोशिश करते हैं जरूर कि उनको लेकर के आए आप सबके सामने. जो जो आपकी टॉपिक्स हैं, आप मतलब नए टॉपिक्स भी हम लेके आते हैं, नए स्पीकर्स को लेके आते हैं, जिससे लोगों को और नया कुछ सीखने को, जानने को मिले, शेयर करने को मिले. तो अगर आपकी भी कुछ ऐसी इच्छा है कि आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहते हैं कि हम आपके साथ शेयर करें, चाहे वो शेरल जी से का सेशन से रिलेटेड हो, या हमारे इतने सारे अच्छे स्पीकर्स हैं हमारे पास, आप सब रेगुलरली आते हो हमारे जूम पे, तो आप हमें लिख सकते हो, बता सकते हो, ग्रुप में डाल सकते हो कि हमें इस तरह के सेशंस चाहिए. हम जरूर कोशिश करेंगे उस तरह का सेशंस आपके लिए लेकर के आने का. एंड आप इस चीज़ की मैं चाहती हूँ कि आप सब वैल्यू करें कि ये सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये पूरा एक टीम वर्क है, और जिसका बहुत बड़ा श्रेय, बहुत बड़ा क्रेडिट आशु जी को जाता है. थैंक यू वेरी मच आशु जी फॉर गिविंग all of us such a beautiful, wonderful platform. Thank you, Ashu ji. यस यस. आशु जी को जो जाता ही है, साथ में शानू जी और मनीषा जी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड से
और बहुत फोकस से काम करते हैं, तो आप दोनों को भी मेरी तरफ से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी क्वींस हम जो लोग कोशिश करते हैं सबके मतलब कुछ लाइनअप ठीक से कर सके, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी इंसान हैं, उग चुक हो ही जाती है। नहीं, कोई So- चूक नहीं हुई अभी तक, तो मुझे नहीं दिखाई दी। इट इज रियली नाइस, एंड हमारे जो फैन फॉलोइंग है और एटलीस्ट अटेंडेंस है वो भी बढ़ रहा है, which is very very nice. Yes, I hope everybody values it Yes, and सब attend करें. 100%. Thank you so much. Thank you, thank Ashu ji, do you have to say anything? Ashu ji, are you there? He's on mute. He's logged in. He's on mute. वो बाहर थे। Ashu ji, you are on mute. अरुणिमा जी, आपको कुछ कहना है या कोई क्वेश्चंस हैं? नहीं, absolutely beautiful session as always. I would have just never, I would have not bargained it for anything else. I would have come and heard. Thank you. बहुत कुछ सीखने को मिला है, और जो डिस्कशंस होती है, we feel so frank and open to discuss because of the nice family atmosphere that we have made this group. I'm so thankful to all of you, and of course Ashu ji, Manisha and Shanu. They are the guiding people, and Cheryl is a gem, of course. No words. Yes. I feel very fortunate to be a part of all of you. This Yes, group. yes. We also feel so happy and fortunate to be a part of this family. बहुत अच्छा, really everybody is so inspiring, every one of them. जब मैं आप लोगों को देखती हूँ मुझे लगता है मैं अभी भी थोड़ा कम हूँ मुझे और मतलब I feel so inspired, you know. I don't feel like कमी वाला कमी, but I feel so inspired. I feel so inspired. Everybody. Every day is a new learning. Every day is a new learning. Yes, 100%. Yes, Anupama ji. Yes. एक मिनट, मैं कह रही हूँ कि हम लोग तो लाइफ लॉन्ग लर्नर हैं, और हमारे ग्रुप में जस्ट लाइक भेलपुरी है ना, जैसे हर तरह का टेस्ट है। सही बात है। That's the beauty of the group. चटपटा मीठा सब है। और चाइनीज तो बोलिए मत। हाँ। मतलब हर चीज में चाइनीज तो बनाना ही होता है ना, हमारे पास अब डोसा भी चाइनीज हो गया है। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। जाहिरा, you wanted to say something, my dear? You're on mute, Zara. ओके, अंजू जी जब तक वो अनम्यूट करती हैं आप बताइए कुछ। हाँ, अनम्यूट हो गई। You are asking me? हाँ, एक सेकेंड। हाँ, जारा जी बताएंगे अभी कुछ। सेशन था डॉक्टर शेल, थैंक यू। वेलकम वेलकम जारा जी। आई मैंने आपको अभी लिंक शेयर किया है कल सुबह डांस का, तो आपको कल डांस में आना है। ठीक है ना? अंजू जी भी आएंगी, कल संडे है। हाँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। Cheryl, it was awesome, amazing. I could not come on the thing today. I participate ज्यादा नहीं कर पाई because I am somewhere else. But पूरे टाइम आपके साथ और लोग भी सुन रहे थे. They were all thinking कि मैं क्या कर रही हूँ. Thank you very much. Fantastic. It was very nice. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Bye bye. Thank you, Shah. Thank you. Thank you very much for a wonderful session. It was an eye-opener for all of us, because we all think that we as men are superior and females feel that they are superior, but we all are part of this universe. The God has created us, so it is not our fault the way we are. We are made like that, right? And we behave that way. Yes, So let us accept all that. yes, So yes. whatever has God has given us, it is our strength. So let us use it in a positive way, where it helps and makes each and every person happy in this world. The world is full of dukhi atma. थोड़ी अच्छी आत्मा। Let us give happiness, peace, and energy to everyone. Yes, yes. So And Cheryl is the right आ जाइए और खुशी आत्मा बन जाइए। Cheryl is the right person to spread it, na? And spray to all of us. It is a spray. Yes, yes. अंजू जी आप Thank you क्या very much बता for रहे all थे? of you for Yeah, thank you. coming Thank up this session. टाटा बाय बाय कर लो बस। you. Thank We you. need to end the session, and we need to talk something about the group also. Shanu, please come ahead.
Yes. Yes. Anju ji wants to say something. Shanu ji, just a moment. Yes, Anju ji. अंजू जी आपको कुछ बताना था? Your session. You're on mute. Mute. Ma'am, you're on mute again. इतना contentment मिलता है हमेशा, and this topic is really very sensitive, because being a teacher, I too witness so many things in my school as well, because big girls are also there, बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, उनके साथ रोज का प्रॉब्लम होता है और बहुत गिल्टी में होती है वो, उन्हें मुझे बताना पड़ता है इट इज नथिंग टू बी इन गिल्टी, ये आपकी पावर है, इसके साथ में आपको कैसे कोप अप करना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये केवल अब विमेन का टॉपिक नहीं है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन है टॉपिक, ये एक टॉपिक है जो ह्यूमन सेंसिटिविटी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे टॉपिक को डिस्कस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है, और इट शुड बी ओपन टू ऑल द लेवल्स, एंड ये रियली योर मेथड, योर वे ऑफ एक्सप्रेशन, everything was awesome. Thank you so much, Cheryl. Thank you, Angela. Thank you. Yes, Shantanu, please come ahead. Yes, before I say something, today is Anju ma'am's birthday. Happy birthday to you, ma'am. Happy birthday, Anju ji. Happy Angela, birthday. अब तो हमें सॉन्ग गाना पड़ेगा, अब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। एक्चुअली मेरे घर में दूसरा शोर भी होता है, कोई बात नहीं, माय डॉगी वो भी पीछे से बोलेंगे ना हैप्पी बर्थडे ममा, वो भी बाबा बोलेंगे, इसलिए वो कब से चिल्ला रहे मेरी मम्मा का बर्थडे है, जल्दी से कोई हैप्पी बर्थडे बोलो। ओके, सो एवरीबॉडी लेट अस स्टार्ट टू सिंग अ सॉन्ग, बर्थडे सॉन्ग। हम लोग अब बर्थडे सॉन्ग गाएंगे अंजू जी के लिए। so nice. 1 2 3 Happy Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Anju ji. Happy birthday to you. Really, your wishes means a lot. Love you so. I'm really thankful from core of my heart. बहुत अच्छा लगता है, ये blessings ही हैं यूनिवर्स की, nothing else, and I embrace. Very much. Thank you so much. Have super good, super powerful, good life. Thank you so much. Okay, so can we come back to work? We have our monthly business meeting scheduled on 28th May, which is next Sunday. So जितने भी रजिस्टर्ड मेंबर्स यहाँ पर हैं, प्लीज आपके जो भी कोलैबोरेशन हुआ है, जिस भी स्टेप पर हुआ है, प्लीज जरूर शेयर करें, और जो लोग अभी रजिस्टर नहीं कर पाए हैं तो वो रजिस्टर जरूर करें और मीटिंग अटेंड कर सकते हैं अपने पार्टनरशिप बिजनेस को ग्रो करने में। So that was all from my side. Thank you so much. Thank you very much. And what about FB Live, all the members, Manisha? या FB लाइव जो करना चाहते हैं प्लीज हमें डेट के साथ, अपने पोस्टर के साथ इंटीमेट कर देंगे तो हम उसको आगे प्रमोट करने में हमें हेल्प होगा। यस शैरल जी। हाँ, तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा था। शानू जी और अंजू जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर FB लाइव पे ये अगर ये आप कर सके, ये टॉपिक अबाउट फीमेल्स एंड पीरियड्स, तो आप दोनों साथ में मिलके कर सके, बहुत बहुत मजा आएगा। I'm ready. शानू जी? I'm ready. Yes. बहुत अच्छा। और आप अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करें उनसे, मतलब जो जैसे शानू जी ने कहा अबाउट द फास्टिंग, हाँ, उनके जो
जो चौथ होती है, क्या है, करवा चौथ। हाँ, वो सब एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सो इससे बहुत अच्छा एक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। Definitely, we will. So thank you very much to all of you for coming ahead and attending such an important session. Cheryl, thank you very much for 2 wonderful sessions. Time का पता भी नहीं लगा. The moment we entered, we were in a different world, thinking very seriously about serious things. And we hope it goes in our head and we start behaving in a very proper manner, all of us. Yes, we will behave. और जाहिरा ने प्रॉमिस, सारा ने प्रॉमिस किया है कल सुबह से शी इज गोइंग टू डांस विथ मी every day in the morning. So we have a new mom Dance is a meditation. Dance is a meditation. Dance is an energy. Dance is life. Yes. Right. So start your day on a very healthy note. So thank you all of you for joining today. Yes. So kal Thank you. On next Thursday. Atma namaste and good evening, good night. Have a wonderful weekend, all of you. Bye. Thank you. Bye. Bye-bye, everyone, and thank you, Cheryl ji, for the wonderful session. Same to you.